دین اور دنیا کی دولت نصیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بچوں کو پیار بھرا سلام۔ اللہ تم سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ تمہیں ہر مصیبت تکلیف سے بچائے، دین اور دنیا کی دولت نصیب کرے، اور تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے شفقت بھرے محبت بھرے سائے قائم رکھے، اور تمہیں اللہ تمہارے شوہر کے ساتھ مل جل کر رہنے کی اور ان کے ساتھ محبت سے رہنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہنے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری کامیابی کے پیچھے کیا ہے بچوں، کسی برے آدمی کا جیسا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے بچوں کے لیے ہم ایک نمونہ بن جائیں گے۔ ہمارے بچوں کے لیے ہم کیا کریں گے، ایک مثال پیش کریں گے، اور ہمارے بچوں کو ہم جو بھی ہم سیکھیں وہ ہمارے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو، اولادوں کو، تمام امت مسلمہ کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ زندگی میں بہت سے لمحات خوبصورت ہوتے ہیں، زندگی میں بہت سے لمحات خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان لمحات میں خوبصورت لمحہ وہ ہے جب کوئی آپ کو دیکھ کر آپ کے والدین کو دعا دے، جب کوئی یہ کہے کہ ضرور تمہارے والدین کی کوئی نیکی تمہارے رب کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اللہ نے تمہیں قرآن پڑھانے والوں میں شامل کر دیا۔ الحمدللہ۔ جب کوئی آپ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو اور آپ کی بہترین تربیت کرنے پر داد دے، جب کوئی اس دنیا میں آپ کے والدین کو عزت دے تو آپ اتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو سوچے اس وقت جب جنت میں آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور مرتبے کے تاج پہنائے جائیں گے تو آپ کی خوشی کس قدر زیادہ ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اور آپ تمام اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ الحمدللہ۔ میں آپ سے اپنے تمام کے والدین کے لیے رحمت اور شفقت کا سوال کرتی ہوں، ان پر ویسے ہی کرم فرمائے جیسے انہوں نے بچپن میں ہم کو شفقت کی۔ چلنا بھی نہیں آتا تو ہمیں ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا، ہمیں یہ تربیت کی، ہمیں سب کچھ اچھا دیا۔ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دوسروں کی عزت کرنا آپ کے کردار کی خوبصورتی واضح کرتی ہے۔ ظرف اعلیٰ کریں اور انسان کو عزت دیں، چاہے گھر والے ہوں، چاہے بہن بھائی یا شوہر یا ساس سسر، آپ کا دوست ملازم یا سڑک پر موجود سائل ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کی عزت ان کے کپڑوں سے نہیں، گاڑیوں سے نہیں، گھروں سے نہیں، اور اسٹیٹس کے مطابق نہیں، بلکہ انسانیت کے لیول پر کی جاتی ہے۔ اپنے کردار کو پختہ کریں، ایسا پختہ کرنے کے سامنے والے کے اخلاق سامنے والے کی اخلاق سامنے والے کی اخلاق کچھ بھی نہ ہو، ہماری اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے نہ ہو، سامنے والے کی اخلاق ہماری اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے نہ ہو۔ الحمدللہ۔ بعض اوقات لڑائی جھگڑے سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر تباہی روکی جا سکتی، بعض دفعہ اوقات لڑائی جھگڑے سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر تباہی روکی جا سکتی ہے۔ والدین کی عزت کرو، ان کا اہتمام کرو۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دیں یا نہ دیں، سایہ ضرور دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون برکت عطا فرما، اور ہمیں اور تمام امت مسلموں کو ناگہان یا آفت سے ہمیشہ بچا۔ آمین۔ زندگی میں بہت سی غلطیاں ہوئی، لیکن جو غلطی لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا خمیازہ سب سے زیادہ ہے۔ یا اللہ تو ہی رحم کر، کرم کر، تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی پرسان حال ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اللہ ہمیں دین دنیا کی دولت نصیب فرما، ہمیں دین کا داعی بنا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے ساتھ ہمارے دین کا کام کرنے اور ہمارا ہاتھ بٹانے کی توفیق دے۔ ہمیں ہر آزمائش سے پورا اترنا۔ ایک دروازہ بند ہوا تو 70 دروازے کھولنے والا میرا مالک مشکل کشا۔ ماں جتنا اپنے اولاد کو پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا میرا مالک رب العزت رب العالمین ضرور ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمیں ہمت دے، استقامت دے، ہماری نیتوں کو صحیح فرما، ہمیں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی دعا میں شریک کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہماری زندگی میں نماز اور قرآن کو شامل کرنا، اول وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کی تلاوت کو روزانہ معمول بنانے کی توفیق دے، اور معنی کے ساتھ کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے۔
اے مالک مشکل کشا ہمیں دین دنیا کی دولت نصیب فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمیں اللہ کی تابع داری، فرما برداری، صبر و تقوی، شکر گزاری اور ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے، ہم خطا رانی کرنے سے ہمیں روک دے، بڑوں کے ساتھ تابع داری اور بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے، ہمیں روزی محشر میں رسوا ہونے سے بچا لے، ہمارا نام میں عمل دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، ہماری مغفرت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر، اور جو بچے دین کا کام کرتے ہیں اور جو بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں تمام کھولا جسمانی اور روحانی طاقت عطا فرما، اور ہر سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، ہمارے ساتھ بھی ہمارے بعد بھی قائم رہے، آمین۔ عمر خزاں مانگ کر آئے تھے 4 دن، عمر خزاں مانگ کر آئے تھے 4 دن، تو آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار، الحمدللہ۔ جو ماں باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، جو ماں باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سب کو اچھی ہدایت دے، توفیق دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے۔ بچوں سب سے اچھا دعا ماننے کا ٹائم فرض نماز کے بعد 5 وقت کی یا پھر تہجد کے بعد دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں کو خوش قبول کرے گا۔ جب اتنی ٹھنڈی میں جب ہم لوگ کمبل سے نکل کر، چادروں سے نکل کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ کو یہ بہت پسند آتا ہے ہمارا ہے، تو اللہ کو ہم خوش کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ نہ سردی دیکھیں گے نہ ٹھنڈ دیکھیں گے، بس اللہ کو تہجد کے ٹائم پر اٹھ کر برابر اس کی عبادت کریں گے، اور جو بھی مانگنا ہے تنہائی میں اللہ سے رو رو کر، اگر رونا نہیں آیا تو رونی صورت بنا کر اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہمیں حسد جلن اور بغض سے فقر سے دور رکھ، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، ہمیں اور ہمارے تمام امت مسلمہ کو تمام کو ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو بھی دیا ہے اس پر شکر اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق دے، اور جو یہ کلاسز بچے چلاتے ہیں اللہ ان تمام کے گھروں میں روشنی ہی روشنی برسا دے، اور ان کے گھروں میں اللہ نہ کرے اگر کوئی تکلیف ہے تو اللہ ان کی تکلیف کو، ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، ان بچوں کے گھر میں اللہ تو ہی رحمت کی بارش برسا دے، اور جو کس کے گھروں میں جوان لڑکیاں ہیں کہ شادی یہاں نہیں ہوئے ہیں، والدین کی پریشانی کو دور کر دے، اور لڑکیوں کو کوئی اچھے دیندار لڑکے نصیب فرما، اور اگر گھر میں لڑکے بھی جوان لڑکے ہیں تو ان کے لیے بھی دیندار لڑکیاں دلا دے مالک مشکل کشا، تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، ہم سب کی دعائیں قبول کرنا، ہم دعائیں کریں گے نا بچوں تو اپنے لیے بھی کریں گے دوسروں کے لیے بھی کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ دوسروں کی دعاؤں کو بھی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ سننے سمجھنے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بہنوں سورہ النساء آیت نمبر 15، الحمدللہ یہاں پہ میں بتاتے چلوں بہنوں کہ وہاں پہ وہ زمانے میں مدینے کے دور میں آ جاتے ہیں، اوکے، ذہن میں مدینے کے دور کو لے کر آ جاؤ کہ کیسا دور چل رہا تھا بہنوں اس زمانے میں، مکہ ہو یا مدینہ ہو بہنوں، شراب اور زینا یہ 2 گناہ جو تھے وہ بہت ہی عام تھے۔ کون سے 2 گناہ بہت عام تھے؟ ایک شراب اور ایک زینا، یہ 2 بڑے خرابیاں بہت زیادہ تھے بہنوں، کیونکہ ابھی تک اسلام جو ہے وہ پھیلا نہیں ہے، ابھی تک اسلام میں کوئی اسٹرکٹ رولنگز بھی نہیں آئے تھے، آہستہ آہستہ اسلامک اسٹیٹ یا ریاست یا پورا لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز آ رہے تھے بہنوں۔ تو یہاں پہ جب تک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے بہنوں، 13 سال ہے نا، 13 سال جب تک مکے میں تھے بہنوں، وہاں بھی شراب اور زینا بہت زیادہ تھا،
खामोश रहते थे, किसी को भी कुछ नहीं बोलते थे, हुक्म भी नहीं आया था अल्लाह का, सिर्फ तौहीद की दावत दे रहे थे, तौहीद को प्रैक्टिस करते हुए चल रहे थे सहाबा भी। कोई किसी को रोकता नहीं था बहनों, मतलब अपने जुबान पर जिप लगा दिए थे। यानी अल्लाह ने कहा भी नहीं कुछ करो और कुछ कर भी नहीं रहे थे किसी को भी। यानी ये सब गुनाह देख कर भी, शराब का गुनाह, जिना का गुनाह देख कर भी कोई किसी को नहीं टोक रहा था या रोक रहा था। देखो बहनों, जब हम भी पहले पहले कुरान क्लासेस में आते हैं ना बहनों, और जब हमको भी कुछ पता चलता है, तो हम लोग बहुत जल्दी सबको है ना सब बोलना चालू कर देते हैं कि नहीं तू ये मत कर, हराम है, देख तू ये कर रही है, ये गुनाह है, तू जहन्नमी है, तू ये है, तू वो है। यहाँ पे ना इससे हिकमत मालूम होती है बहनों, कि देखो मक्के का दौर देखो बहनों, 13 साल पता था ना क्या सही है क्या गलत है, मगर इतनी बड़ी बड़ी खराबियों को देख कर भी कैसे सब्र से काम ले रहे थे ना, कैसे बर्दाश्त करके चल रहे थे ना बहनों। यानी हिकमत बहुत जरूरी है बहनों, सही टाइम पे सही दावत देना ये बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ था बहनों, शराब तो इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि सहाबा कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला पहले ही शराब को हराम कर देता तो शायद हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, उस पर अमल नहीं कर पाते थे। पर अल्लाह ने पहले क्या किया बहनों, ईमान को मजबूत किया है ना, उनकी रूह को जगाया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में बुराई कर करके अल्लाह ताला, एक वक्त आया कि क्या हो गया, जब हराम हो गया बहनों, तब तक क्या हुआ, सहाबा के जहन भी बन गए। अभी मैं फौरन मेरे बच्चे को बोलूंगी ना कि टीवी आज से हराम है, तू नहीं देखेगा, तू मोबाइल पे नहीं बैठेगा बहनों, वो मुझे छोड़ देगा पर वो बुराई को नहीं छोड़ सकता, बिकॉज वो इतने टाइम से कर रहा है ना। तो मुझे भी पहले उसको ये बुराई रोकने से बेटर है कि मैं उसको क्या करूं, तौहीद के बारे में बोलूं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में बोलूं, उसको इतनी अच्छी बातें इस्लाम की बताते जाऊं, उसको अल्लाह से कनेक्ट कर दूं, उसको कुरान से कनेक्ट कर दूं, और फिर मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बहनों, ये कुरान अपना काम खुद ही कर देगा, है ना। एक इंसान को देखो बहनों, हर एक किसी का फैन नहीं बन जाता ना। सेलिब्रिटी का फैन वो इंसान कब बनता है, जब वो उसको देखता है, उसके बारे में जानता है, फिर एक वक्त आता है कि वो उसका फैन हो जाता है ना, मजनून हो जाता है कि भाई वो फैन जो खाएगा मैं, मतलब वो जो सेलिब्रिटी खाएगा मैं वो खाऊंगा, जो वो पहनेगा वो पहनूंगा, उसको छोड़ते नहीं है फिर वो लोग, है ना। उसी तरह हमारे बच्चे अल्लाह के फैन कब बनेंगे, जब तक कि उनकी मारिफत ना हो। जिस दिन उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मारिफत हो जाएगी, पहचान हो जाएगी, फिर हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे बच्चे खुद इसकी मेहनत करेंगे कि मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को क्या पसंद है, हम वो करेंगे, जो ना पसंद है वो छोड़ देंगे, है ना। तो बहनों याद रखना कि सहाबा भी ये बात बोलते हैं कि अच्छा हुआ पहले हमारे जहन बने फिर आयत उतरी, और जब ये आयत उतरी ना बहनों, तो कितने सहाबा के हाथों में जाम था, लबों के करीब कर रहे थे, मगर जब ये हुक्म आया तो सहाबा ने एक घुट भी क्या किए बहनों, नहीं पिए, उनके ऊपर हराम जैसे हुआ। उन्होंने उस शराब के जाम को ऐसा, मतलब ऐसा फेंके बहनों, कि बताते हैं कि एक एक जो ना नहर शुरू हो गई, मतलब सबने अपने घरों से शराब को ऐसा निकाला बहनों, ऐसा निकाल के फेंका, सबके घरों में शराब थी बहनों, ड्रम भर भर के, मतलब सब पूरी ऐसी एक नदी बह रही थी बहनों, मगर सबने उसको क्या कर दिए, छोड़ दिए। ये कब हुआ, अगर पहले ही अल्लाह बोलते था तो नहीं होता बहनों। समझ में आ रहा है, आहिस्ता 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 जो है वो आयतें उतर रही थी। अब इसी तरह दूसरा क्या था, जीना। जीना तो इतना आम था बहनों कि कोई औरत, ओके मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ बहनों, कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होती तो उसको ये भी नहीं पता कि किसका बच्चा है। समझ में आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा जीना हराम था, मतलब मतलब इतना आम था जीना कि उसको पता ही नहीं कि मेरे पेट में किसका बच्चा है। तो फिर वो क्या करेगी ना, तो वो क्या करती थी कि जब बच्चा पैदा हो जाता था, तो वो जो है ना, वो ज्योतिषी होते हैं ना, वो जमाने में उनको बुलाते थे, और वो औरत बोलती थी कि देखो ये बच्चा मेरे को पैदा हुआ है, अब तुम बताओ कि ये आदमियों में से ये इसका इसका जो है ना ये बाप कौन है। तो वो ज्योतिषी क्या करता था, उसके जो आंख नाक और नक्शे को देख के वो गेस करता था कि अच्छा ये इसका बाप है, और फिर वो उसका क्या होता था, उसको नाम, उसका बाप का नाम या वारिस में वो आ जाता था। यानी कि इतना भी नहीं पता कि कौन असल बाप है। यानी कि बताने का मकसद क्या है कि कोई मतलब इतना ज्यादा जीना क्या था,
मतलब इतना ज्यादा था, यानी नस्ब का पता नहीं चलता था कि किसकी नस्ल में से है। और इतना ही नहीं बहनों, कितने जो शादीशुदा कपल्स भी होते थे ना बहनों, तो वो अपनी बीवियों को भेजते थे, बड़े बड़े सरदारों के पास भेजा करते थे कि जा तू जा उन लोग के पास, क्यों? ताकि वहां से तू प्रेग्नेंट हो जाए और तेरा बच्चा जो है ना वो नस्ल का पैदा हो, मतलब मतलब बच्चा कौन पैदा हो रहा है, वो फला सरदार का पैदा हो रहा है, वो फला नस्ल का पैदा हो रहा है। यानी ऐसी उनकी क्या थी बहनों, सोच थी बहनों, सोच के देखो। हाँ, ऐसे दौर में, ऐसी जहनी गंदगी के दौरान अब इस्लाम आ रहा है। और ये गैर इस्लामी मुल्क था मक्का, है ना। अब देखो जब मदीने में आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में आ गए बहनों, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे इस्लामिक शरीयत आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मतलब तकरीबन 300 400 मुसलमान हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तब जाके अल्लाह तबारक ताला जो है ना वो बता रहा है, यानी कि इब्तदाई की सजा यहाँ पे पता चलेगी कि बेहयाई अगर कोई औरत कर रही है तो क्या करना, कैसे करना, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहा है। मगर ये जो आयत नंबर 15 और 16 है बहनों, इसके बारे में कई मुफस्सरीन में बहुत सारे ये है, कुछ कहते हैं कि भाई ये जो आयतें हैं ये मनसूख हो गई है, मनसूख यानी बदल गई है। पहले पहले शराब भी हराम नहीं हुआ था, है ना। पहले पहले तो आया था कि उसमें बहुत सारी खराबियां हैं, कुछ नफे हैं। फिर आया कि भाई नमाज के टाइम पे मत पियो, नशे की हालत में तुमको नहीं पता तुम क्या पढ़ रहे हो, और उसके बाद आया कि अब छोड़ दो, है ना। उसी तरह बहनों जब जीना वहां पे हो रहा था, तो शुरू शुरू में ये आयतें उतरी थी, आयत नंबर 15 और 16, ओके। और बाद में जो है अल्लाह तबारक ताला ने सूरे नूर जो चैप्टर नंबर 24 है बहनों, उसमें जो है आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने उसको क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। इंशाल्लाह जब सूरे नूर आएगा तो और डिटेल में पढ़ेंगे, मगर बोलने का मकसद ये है कि पूरे कुरान में ऐसे 5 या 6 आयत ही है बहनों जो क्या हो गए, मनसूख हो गए, बदल गए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ज्यादा नहीं है बहनों। पर अगर ये कुरान में आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, मतलब ये आयतें कुरान में अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, पर मनसूख हो गई, बदल गई, दूसरी आयत इसमें आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या बातें हैं, हाँ, बेहयाई, बदकारी, फहश के बारे में क्या हो रहा है, इंशाल्लाह हम ये आयतों पर जानेंगे, कोशिश करेंगे। सब बहनों से गुजारिश है कि वो अगर कोई न्यू बहन है तो वो स्क्रीन पर देखे, ओके इंशाल्लाह, ताकि एक एक वर्ड जो है वो समझ में आ जाए। तो जहन हम पहले जहन अपने देख ले बहनों, कि मक्के में तो गैर इस्लामिक मुल्क था, है ना, वहां पे तो कुछ भी नहीं कर सके, 13 साल खामोश थे। मगर जब मदीना आ गए, हिजरत हो गई, यहाँ पे जब इस्लामिक बोलते हैं ना रियासत बन रही है, इस्लामिक स्टेट बन रहा है, तो अल्लाह ताला यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहे हैं कि भाई क्या करना, कैसे करना, कब करना, है ना, क्या सजा देना, है ना। क्योंकि देखो बहनों, ये जो पनिशमेंट आ रही है, ये जो सजा आ रही है ना, हम लोग बोलते हैं अरे क्या इस्लाम ऐसा मजहब है ना, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कहीं ना कहीं तो लोग जो है वो बताते हैं कि तुम लोग ऐसे हैं, तुम लोग वैसे हैं। तो बहनों अगर ये कैपिटल पनिशमेंट नहीं होता, अगर ये सजा नहीं होती, हाँ, तो क्या होता बहनों, ये गुनाह बहुत आम हो जाता। और कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक ताला पाक है, इस्लाम पाक है, और अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, जो माशरत हो, जो सोसाइटी हो, वो भी कैसी रहे, पाक साफ रहे, है ना, जिना से दूर, बेहयाई, बदकारी से दूर। वरना बहनों हमारा ही जीना मुश्किल हो जाता, है ना। मैं हमेशा डरती रहूंगी कि मेरा हस्बैंड पता नहीं घर में तो अच्छे, बाहर क्या कर रहे हैं, है ना। मैं, मेरे शौहर को कॉम्प्लेक्स होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह ने ऐसे रूल्स को लाए हैं बहनों, है ना। वरना आज अगर बच्चों को अगर रोकना चाहो तो हम रोक नहीं सकते बहनों। मैं तो सचमुच कितने बार हैरान होती हूँ कि काफिर लोग क्या करते होंगे ना, काफिर लोग अपने बच्चों को कैसे रोकते होंगे ना। हम तो कम से कम बोल सकते हैं कि भाई देखो इस्लाम में मना है, शराब मत पियो, जिना मत करो, इंटरेस्ट मत लो, लड़कों से बातें मत करो, लड़कों के साथ ये मेल झोल या उनके साथ घूमना फिरना हमारे इस्लाम में मना है। कम से कम हमारे बच्चों को हम तरबियत कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इन ये लोग क्या कर सकते हैं बहनों, ये लोग तो कुछ नहीं कर सकते, है ना, जान के भी ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये आज का माहौल है बहनों।
तो हम तो अल्लाह का मतलब कितना शुक्र करो उतना कम है अल्हम्दुलिल्लाह, कि कम से कम हाँ हम लोग हमारे बच्चों को तरबियत कितनी बेहतरीन कुरान के जरिए कर सकते हैं ना, माशाल्लाह, रोक सकते हैं बुराई से। और हमारा जो कितने लोग हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि अरे देखो इनका जो इस्लाम है माशाल्लाह, इन लोग कैसे खुश होते हैं। यानी जहाँ पे एक वक्त था कोरोना फैल गया था और कितने काफिर लोग डर रहे थे बहनों, कितने डर से खौफ से बैठे थे, हम मुसलमान कितने मुतमईन और इत्मीनान में थे ना, कि भाई अल्लाह की मर्जी, अल्लाह शिफा करने वाला, अल्लाह ही के हाथ में सब कुछ है। तो हमारे जिंदगियों में क्या है बहनों, जब तवक्कल होता है तो इत्मीनान और सुकून भी रहता है, और वही उनकी जिंदगियों में क्या होता है बहनों, खौफ होता है। इन मतलब हर कपल के बीच में एक डर रहता है ना, कि भाई पता नहीं सामने ऐसे पीछे क्या करते होंगे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात है बहनों, जब ये कैपिटल पनिशमेंट है, तो हमारे जो मुसलमान कंट्रीज है बहनों, वहां पे ये जो बोलते ना, ये जिना या जो भी क्राइम रेट है बहनों, वो बहुत ही लोवेस्ट है बहनों, सबसे लोवेस्ट। अगर क्राइम रेट अगर देखोगे ना बहनों, तो सऊदी में और ईरान में है बहनों, माशाल्लाह, दो मुसलमान कंट्री सऊदी और ईरान, जहाँ पे क्या है, लोवेस्ट क्राइम रेट है। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह जब ये कोई भी इंसान जब कोई ऐसी बदकारी करता है या ऐसा कोई गुनाह करता है और लोगों को बुला के जब उसको सजा दी जाती है, तो लोगों के दिलों में भी डर बैठ जाता है। ओके, और लोग करने से डरते भी है। और फिर क्या होता है बहनों, जो सोसाइटी है वो भी कैसी रहती है, अमन वाली, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि पता है अगर कोई मैं अगर चोरी करूंगा, हाँ, पकड़ा जाऊंगा तो मेरा हाथ काट दिया जाएगा। हाँ, तो इससे क्या होगा, हर इंसान डरता है चोरी करने से। तो खुले तौर पे भी कोई भी इंसान अगर कार बंद भी ना करे, अपना वॉलेट छोड़ दे, लैपटॉप छोड़ दे, तो सामने वाले को भी अमन रहता है, कि सिक्योरिटी रहती है, हिफाजत रहती है, कि भाई कोई मेरा माल उठाएगा नहीं, है ना। तो माहौल कैसा हो गया बहनों, अमन वाला, पीस वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना इस्लाम जिस कंट्री में रहेगा, या जितना इस्लाम किसी की जिंदगी में रहेगा बहनों, उतना ही वो क्या रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा, उतना ही उसकी जिंदगी में क्या रहेगी, अमन रहेगा, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आयतों पर आ जाते हैं बहनों। यहाँ पे वल्लाती है बहनों, ओके, यहाँ पे जो है ना खड़ा जबर है। कभी कभी अगर वल्लती पढ़ेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, जमा के लिए हमको यहाँ पे वल्लाती एक अलीफ की मिकदार खींचना ही पड़ेगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे औरतों के लिए कहा गया, प्लॉरल है, ओके, मतलब जमा है, सब औरतों के लिए कहा गया। क्या कहा गया, कि वो यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं, और कोई मतलब बहुत सारी औरतों के बारे में आ रहा है, ओके। और वो औरतें जो कैसी आती है, फहश काम के साथ तुम्हारी बीवियों में से। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारी बीवियों में से अगर कोई है जो क्या करती है, बदकारी करती है, बेहयाई का काम करती है, हाँ, जिना करती है। अल यहाँ पे जो अल फहश आ रहा है ना बहनों, तो इससे खास कर क्या है, जिना है। ओके, तो अगर कोई औरत लुविडनेस करती है, ऐसा कोई काम करती है बीवियों में से, तो वो क्या करेगी, जो आदमी लोग होंगे वो क्या करेंगे, उनको जो है तलब करना होगा, मांगना होगा, या कॉल टू विटनेस करना होगा। कितना? अल्लाह ताला क्या कहते हैं, तो मांगो, क्या मांगो, उन पर चार तुम में से, यानी चार गवाहियां होना चाहिए। यानी चार लोग जो है वो विटनेस होना चाहिए, गवाह होना चाहिए, कि हाँ भाई हमने ये फलां औरत को क्या करते हुए देखा, ये फहश काम करते हुए देखा। चार गवाहों की बहुत जरूरत है। और यहाँ पे अंदाजा नहीं चलेगा बहनों, वो बोल रहा है कि हाँ हाँ शायद मैंने देखा, ऐसा नहीं, अंदाजन नहीं चलेगा, एग्जैक्टली exactly, यानी कि उसको सही गवाही देनी पड़ेगी। ओके, तो ये इस्लाम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि गुनाह इतना बड़ा है तो सजा भी बहुत बड़ी है। और जब जुर्म साबित होना है बहनों, तो जो प्रूफ होता है ना, वो भी बहुत मजबूत होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो पहला तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, कि चार गवाह होना चाहिए तुम में से। अब क्या होता है ना बहनों, कभी कभी समझ जाओ दो लोग हैं, तीन लोग हैं, हाँ, चार तो नहीं मिल रहे, तो ये जो है ना, ये चीज को नहीं ली जाएगी बहनों। इस्लाम देखो
کیا بہترین اور پیارا مذہب ہے. 4 مطلب 4, اس کے نیچے رہے گا تو بھی نہیں لے گا اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2 رہیں گے 3 رہیں گے نہیں, 4 مطلب 4 گواہ تو ہونا ہی چاہیے. الحمدللہ. اس کے اور زیادہ رولز اینڈ ریگولیشن سورہ نور میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے بہنوں. اوکے, اب یہاں پہ کیا پتا چل رہا ہے کہ آج کے زمانے میں کیا کریں گے. ہاں, آج کے زمانے میں تو سب ایسی سوسائٹی میں رہتے کہ سب اپنے گھروں میں رہتے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ مطلب پتا چل جاتا نا کہ کون کس کے گھر میں گھس رہا ہے. چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے, آس پاس ہوتے تھے, مطلب اتنا ڈیولپمنٹ نہیں تھا بہنوں. اوکے, تو سب کو پتا چل جاتا تھا, 4 گواہ کہیں نہ کہیں مل جاتے تھے. پر آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے بہنوں. تو یہاں پر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں نا کہ اگر ہمارے پاس CCTV کیمراز ہے, ہاں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو وہ چیز بھی ہم ایز اے پروف لے سکتے ہیں. اوکے, اور کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ اگر وہ عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے, پتا نہیں ہے کہ بھائی, کیونکہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی اور سے پتا چل جائے, 2 لوگوں سے پتا چل جائے کہ بھائی تمہاری جو گھر کی بیوی تھی وہ زانی تھی, وہ تمہارے غیر موجودگی میں کسی کے پاس جاتی تھی. اب 2 گواہی مل رہے, 4 تو نہیں مل رہے, تو ایسا انسان پھر کیا کر سکتا ہے, DNA بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے نا. آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے بہنوں, ہے نا. تو DNA ٹیسٹ ہے, CCTV کیمرا ہے نا. اور پھر اگر کوئی بولتا ہے کہ فلاں لانج میں یا ہوٹل میں جاتے ہوئے دیکھے, ہاں, تو وہاں پر بھی ویٹرز ہوتے ہیں, ریسپشنسٹ ہوتے ہیں, ہے نا. کوئی تو کوئی اولا, آج کل تو ڈرائیور جس میں جاتی ہے عورت, سب ٹریک کر سکتے ہیں بہنوں, ہے نا. آج کل ٹریکنگ کرنا کتنا آسان ہو چکا ہے نا. تو اگر کچھ ایسے سب اس کو 4 سے زیادہ گواہ مل جاتے ہیں, تو پھر وہ عورت کیا ہو جاتی ہے, اس کا گناہ ثابت ہو جاتا ہے. اوکے, تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں بہنوں کہ 4 گواہ ہونا ضروری ہے. پھر اگر ابھی نیکسٹ رولنگ کیا ہے بہنوں کہ پھر اگر وہ گواہی دے دے, یعنی کہ اگر سمجھ جاؤ بہنوں کی 4 لوگ مل جاتے ہیں, وہ گواہی دے دیتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہاری بیوی جو تھی وہ کیا تھی, اس نے فحش کام کی, تو اس کے ساتھ کیا کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ان کو روک لو گھروں میں. ان کو کیا کرنا ہے, گھروں میں روک لینا ہے. اب دیکھو بہنوں, باہر نکلے گی تو پھر وہ شاید وہی کام کرے گی, تو اس سے اچھا ہے بہنوں کہ اس کو اپنے گھروں میں روک لے. جیسے کہ کرائم جب انسان کرتا ہے, کوئی بھی بہنوں جو انسان کرمنل جو کرتے ہیں, کرائمز کرتے ہیں بہنوں, تو اس کو بھی کیا کرتے ہیں, جیل خانے میں بند کر کے رکھتے ہیں نا, اس کو کھلے میں نہیں چھوڑتے, ہے نا, تاکہ سوسائٹی بھی بچ جائے اور تاکہ وہ انسان کی عادت جو خراب ہو گئی تھی وہ بھی صحیح ہو جائے, اور اس کی پنشمنٹ بھی ہوتی ہے, سزا بھی ہوتی ہے بہنوں. تو اسی طرح بہنوں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو پتا چل جائے, گواہ بھی مل جائے کہ تمہاری بیوی یہ کام کری ہے, تو اس کو کیا کرو, اپنے گھر میں روک لو, یہاں تک کہ کیا آ جائے بہنوں, اس کو جو ہے وہ موت آ جائے. یعنی کہ جب تک اس کو موت آ جائے, یعنی گھر میں ہی رکھو اس کو, ہاں, یا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا بنا دے, اس کے لیے کوئی راستہ بنا دے. اب راستہ کہاں بنا بہنوں, سورہ نور میں بن گیا, آیت نمبر 2. یہی بات میں سمجھا رہی تھی کہ پہلے یہ آیت اتری, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پراپر رولنگز جو ہے وہ سورہ نور میں لے کر آ گئے. اب گھروں میں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, اگر پتا چل جائے کسی کی بیوی نے, اگر ناؤز باللہ اگر اس نے واقعی میں زنا کی ہے, اور گواہ بھی موجود ہے بہنوں, گواہ کا رہنا شرط ہے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھو بہنوں, جھوٹی باتیں, جھوٹے گواہی پیش نہیں کر سکتے بہنوں, اسٹرکٹ رولنگ ہے اس میں. اوکے, اور بہنوں اگر گواہ غلط بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, تو اس کی سزا بھی الگ ہے بہنوں, یاد رکھنا, معمولی بات نہیں ہے, آئے گا سورہ نون میں ڈیٹیل. اور اگر وہ عورت ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی میں اس نے یہ زنا کی ہے, پھر شادی شدہ عورت ہے, تو اس کو کیا کریں گے, اس کو سنسار کریں گے, یعنی اس کو کیا کریں گے, رجم کریں گے. یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہے نا زمین میں جو ہے نا گاڑتے ہیں بہنوں, ایسے مرد اور عورت کو, اوکے, جو دونوں
दोनों शादीशुदा है और जिना कर रहे थे, 4 गवाह भी मिल गए, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, ये कैपिटल पनिशमेंट है। लोगों को बुला के ये सब काम करना है कि उनको मट्टी में दफनाना है और उनको फिर क्या करना है, पत्थरों से इतना मारना है, बिल्कुल तरस नहीं खाना है जिससे उनकी जान चले जाए। अब देखो बहनों, कहीं ना कहीं लग रहा है कि या अल्लाह ऐसा जुल्म क्यों, है ना। तो देखो बहनों, ये मैंने पहले भी बताया ना, एक तो दूसरों को डर खौफ आ जाए, और ये लोग शादीशुदा थे बहनों। समझ में आ रहा है, इनको ऐसा संसार, ऐसा रजम क्यों किया जा रहा है। इनके पास हलाल तरीका था, इनके पास इनका खुद का स्पाउस मौजूद है जहां पे वो जाके अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते थे। मगर ये लोगों ने क्या किया, दूसरे इंसान के साथ जाके ये काम किए। अब इससे क्या होगा बहनों, एक तो नस्ल बर्बाद होगी, अगर ये औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो जानी बच्चा पैदा हो रहा है ना, हराम बच्चा पैदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि नस्ल बर्बाद हो, हराम बच्चे पैदा हो। अल्लाह नहीं चाहते कि सोसाइटी खराब हो। समझ में आ रहा है, मैंने पहले भी कहा ना, अल्लाह पाक है, पाकीज़गी को पसंद करता है, वरना हम लोग की जिंदगियों में अमन ही नहीं रहेगा ना। मैं तो डरती रहूंगी कि पता नहीं मेरा शौहर कहाँ चले जाए, शौहर डरता रहेगा कि बीवी कहाँ चले जाए। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं ताकि सब जो है वो क्या रहे, अमन में रहे, डर खौफ रहे कि अल्लाह ना करे अगर मैंने किया तो मेरे साथ ऐसा होगा, है ना। और अगर समझ जाओ बहनों कि वो लड़का और लड़की कुंवारे हैं, लड़का और लड़की कुंवारे हैं और पकड़े गए, 4 गवाह भी मिल गए, तो उनको क्या करेंगे बहनों, 100 कोड़े मारेंगे, 100 लैशेस मारेंगे, उसमें भी नरमी का जरा भी नहीं करेंगे। मगर उसमें मरते नहीं है, क्योंकि 100 लैशेस मारते हैं। मगर वहां से क्या होता है, क्योंकि वो कुंवारे थे, गलती हो गई, मगर क्या करना है बहनों कि उसको भी क्या, क्यों सबके सामने करना है, ताकि दूसरे कुंवारे कुंवारियों के बीच में क्या हो जाए, डर खौफ हो जाए कि नहीं, हमको क्या करना है, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना है। ये सब पनिशमेंट कब आएंगे बहनों, जब गवाह मौजूद हो, है ना, 4 गवाह मौजूद हो। अब समझ जाओ गवाही नहीं है, हाँ, गवाही नहीं है बहनों, तो याद रखना बहनों, जो लड़का और लड़की जिससे गुनाह हो जाते हैं, अगर समझ जाओ बहनों अकेले में गुनाह कर दिए, किसी को नहीं पता चला, अब वो लड़का और लड़की खुद ही जो है ना वो नदामत कर रहे। ये सब रूलिंग्स कहाँ होंगे बहनों, जहाँ पे इस्लामिक शरीयत होगी। ये रूलिंग मैं अब नहीं कर सकती, हाँ। मैं इंडिया में रह के, ओके, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर मैंने किसी हस्बैंड को कुछ करते हुए देख ली, 4 गवाह भी मैंने निकाल ली, तो ये रूलिंग मैं यहाँ नहीं कर सकती हूँ, ये इंडिया है बहनों। समझ में आ रहा है, मैं सबको जमा करके संसार रजम नहीं कर सकती हूँ। ये सब कैपिटल पनिशमेंट क्या होंगी, इस्लामिक कंट्रीज में होंगी बहनों, ओके। अब यहाँ पे तुमको किसी स्कॉलर को बुला के पूछना पड़ेगा कि भाई क्या करूं, 4 गवाह भी है और रंगे हाथ पकड़ लिए, आप क्या करना, ये सब देख लो। क्यों मालूम है बहनों, आजकल लोग अपने हाथों में कानून ले लेते हैं, इतना मारते हैं, इतना कुछ करते हैं बहनों, कि मीडिया वाले जो है ना इसका बखेड़ा बना देते हैं, या तो ऑनर किलिंग के नाम से जो है वो कुछ भी कर लेते हैं। और कानून अपने हाथ से लेके क्या होएगा बहनों, अगर मैं खुद जान से मार दूंगी तो मैं सजा पाऊंगी। तो ये सब जो है ना बहनों, इन सब से बहुत बचना है। समझ में आ रहा है, झूठी गवाही भी नहीं होना चाहिए, कानून अपने हाथ में मत लो, ज्यादती मत करो, खुद से मत सब करो। समझ में आ रहा है, और ऑनर किलिंग से भी हमको बहुत बचना है बहनों। समझ में आ रहा है, तो ये सब हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखेंगे, सब चीजें अपने जहन में रखेंगे बहनों, कि देखो ये जो अल्लाह ताला जो है कितना कुछ यहाँ पे बता रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने वाकई में क्या किया, एक रास्ता बना लिया जो सूरे नूर में आएगा, इंशाल्लाह। अब समझो बहनों, अगर वो लड़का लड़की जो है, मैंने कहा ना कि कर दिए गलत काम, और कोई गवाह नहीं है, इंडिया में रह रहे, अभी कोई गवाह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उनको नदामत हो रही है, गिल्टी फीलिंग हो रही है कि अरे नहीं करना चाहिए था, तो ऐसे लोग अगर सच्चे दिल से अल्लाह के पास तौबा तिल्ला कर लिए, तो अल्लाह ताला उनको क्या करेगा, माफ कर देगा। मगर शर्त क्या है बहनों, कि उसको जो है ना वापस रिपीट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, दोनों लड़का लड़की क्या करेंगे, अल्लाह से तौबा तिल्ला करेंगे, नदामत के साथ करेंगे, और क्या करेंगे, दोबारा वापस से जीना नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, सच्ची तौबा करना है, रिपीट नहीं करना है, ओके। और समझ जाओ बहनों
किसी आदमी ने जबरन किसी लड़की को जो है जो जिना कर दिया, जिसको हम आज की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रेप बोलते हैं ना, अगर किसी आदमी ने किसी को रेप कर दिया बहनों, ओके, तो इसकी रूलिंग क्या आएगी कि वो आदमी करने के बाद शर्मिंदा हो गया कि अरे मुझे नहीं करना चाहिए था, है ना, तो अब वो पहले हुकुकुल्ला और हुकुकुल इबाद, यानी अल्लाह से भी माफी मांगेगा नदामत के साथ, अल्लाह से कहेगा मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा अल्लाह, और उस लड़की से भी माफी मांगेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं वो लड़की को छोड़ दिया हवा में, नहीं, लड़की से भी माफी मांगेगा। और अब क्या होगा, जो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कानून के पनिशमेंट है, वो उस पर आएंगे। ओके, तो ये सब भी हम क्या करेंगे, जहन में याद रखेंगे इंशाअल्लाह। और ये नेक्स्ट आयत भी इसके साथ ही है बहनों, कि अगर कोई दो लोग जो है वो इनमें से ये काम करते हैं, अब यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है, इसमें दो मर्द भी आता है और एक मर्द एक औरत भी आता है, ओके, दोनों आता है बहनों। यानी अगर किसी दो लोगों से अगर जीना हो जाता है, वापस यही काम, मतलब वो लोग गलत काम कर लेते हैं तुम में से, तो उनको क्या करो, उनको अजियत दो, उनको सजा दो। भले वो दो लड़के हो या एक लड़का और लड़की हो बहनों, उनको जरूर सजा दो। ओके, और अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फिर अगर वो तौबा कर ले और इस्लाह कर ले, तो फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उन दोनों से क्या करो, एराज करो। यानी कि देखो बहनों, जैसे कि मैंने कहा ना कि अभी वो लड़का और लड़की या आदमी और औरत थे, जो भी थे, उनसे गुनाह हो गया, हम अभी उनको सजा, अगर गवाह मौजूद है तो सजा भी देंगे। कुआरे के साथ अलग रूलिंग है और शादीशुदा के साथ अलग रूलिंग है। एक बार ये सजा हो जाती है ना बहनों, तो ये जो कैपिटल पनिशमेंट है जो अल्लाह की तरफ से है, वो क्या कर देती है, सजा जो है वो गुनाह को साफ कर देती है, पनिशमेंट जो है वो सिन को इरेज कर देती है। यानी समझ और बहनों, एक लड़का लड़की कुआरे थे, उनसे जिना हो गया, चार गवाह भी मिल गए, अब क्या करेंगे, इस्लामिक कंट्री था, उनको 100 कोड़े मारे। ओके, अब जो है ना उनके वो पूरे गुनाह माफ हो गए, वो जो जिना का गुनाह था ना वो पूरा माफ हो गया बहनों, सजा मिल गई उनको, आखिरत में पकड़ नहीं है उनकी। अब उनको क्या करो, ये दो जो लड़का लड़की है, अब उनको तौबा भी करना है अल्लाह से, और अपनी इस्लाह भी करना है, सुधरना भी है बहनों। समझ में आ रहा है? अपने अपने आप को सुधारना भी है, तौबा भी करना है कि दोबारा नहीं करेंगे। और ऐसे लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो बहनों, उनको हम क्या करते हैं ना, उनकी जिंदगी हम हराम कर देते हैं, उनको इतने ताने मारते, इतने बातें करते, इतना कुछ बोलते रहते हैं ना बहनों, कि वो लोग हमेशा शर्मिंदा हो जाते है ना। यानी आज के जमाने में अगर बोला जाए ना बहनों, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कभी हमको किसी के थ्रू कोई क्लिप आ गया, कुछ व्हाट्सएप तो आजकल बहुत है ना, व्हाट्सएप में किसी ने हमको वीडियो भेज दिया कि देखो ये लड़का लड़की का अफेयर है, देखो ये लोग बदकारी कर रहे हैं, तो बहनों याद रखना उसका मामला अल्लाह जानता है ना। और बहनों अल्लाह सजा देने वाला है, हो सकता है ये लड़का लड़की दिल से माफी मांग ले, है ना, दिल से अच्छे हो जाए, तौबा कर ले, सुधर जाए। हाँ, अब यहाँ पे तो इस्लामिक कानून नहीं है, करेक्ट, हो सकता है ये दोनों सुधर जाए। हम लोग को है ना बहनों, इसको जो है वो उछालो मत, किसी की इज्जत उछालो मत, किसी के ऐबों को ढांपो बहन। समझ में आ रहा है? हम लोग क्या करते हैं ना, उसको जलील कर देते हैं, उसको रुस्वा कर देते हैं, उसके बारे में सब जगह फैला देते हैं। पता नहीं ना हकीकत क्या थी, हो सकता है वो लड़की के ऊपर जुल्म हो रहा है, हो सकता है उनके पीछे क्या, उनके क्या है, हमको नहीं पता बहनों। मगर आज न्यूज़पेपर का जमाना है, ये मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब का जमाना है बहनों, तो हम किसी की इज्जत को ना उछाले। समझ में आ रहा है? जो भी है उसका तस्कीरा भी मत करो, ऐसे लोगों को जो है ना स्कैंडल बना लेते बहन। समझ में आ रहा है? तो बोलने का मकसद ये है कि ऐसे लोग जो तौबा करते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं, उनको फिर उनके हाल में छोड़ दो, उनको ताना मारना, बातें सुनाना, अब उसकी शादी भी हो गई, वो लड़का लड़की ने कुंवारेपन में कुछ कर लिए बेचारे, माफी तलाफी हो गई, अब उनको इनके हाल पे छोड़ दो, उनके पीछे पद मत पड़े रहो, है ना, उनके पास्ट को बार बार मत बताओ, है ना, ये सब काम हम लोग नहीं करेंगे। बेशक अल्लाह ताला कैसा है बहनों, बहुत
तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला माफ कर देगा और हम उसके पीछे पड़े रहेंगे तो हम भी बहनों, हमको अल्लाह ताला छोड़ेगा नहीं, है ना। और होमोसेक्सुअलिटी के बारे में अगर ये है तो उसकी वईद भी बहुत बुरी है बहनों, उसकी सजा भी बहुत बुरी है। आज तो हम ये दौर में आ गए बहनों कि बच्चों को भी कार्टून के जरिए, पिक्चरों के जरिए, कॉमेडी के जरिए सिखाया जा रहा है कि मेन टू मेन, है ना, आदमी आदमी के बारे में उन लोग बता रहे कि हाँ चलेगा, जायज है, कुछ नहीं, है ना। कहीं ना कहीं आज ये चीज को प्रमोट किया जा रहा है। एलजीबीटी को कितना वो लोग जो है वो बता रहे हैं कि हाँ इसको करो, अच्छी बात है, नहीं करते तो कम से कम सपोर्ट करो, है ना। वेस्टर्न लोग देखो बहनों इसके बारे में आज प्रोजेक्ट दे रहे हैं बच्चों को, पता है स्कूल में बच्चों को प्रोजेक्ट दे रहे कि तुम ऐसे लिखो या कुछ बना के लाओ और बताओ कि तुम ये चीज जो है आज क्यों सही है, हम कर सकते हैं। हाँ ये सब चीजों को सपोर्ट करो। यानी कॉलेज में एक लड़की यूनिवर्सिटी जाती है उसके एडमिशन के लिए, वहां पे उसको सवाल पूछ रहे कि डू यू सपोर्ट एलजीबीटी। अब उसका कॉलेज से क्या लेना देना, उसको वो मुसलमान लड़की को पूछ रहे कि विल यू सपोर्ट दैट थिंग। सोचो बहनों, जान मुझ के ये चीज को वो लोग क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा आम कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, आमीन। और अल्लाह ताला इन सब से बचाए बहनों। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे बहनों, ये सब बातों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह याद रखेंगे। ओके इंशाल्लाह। तो यहाँ तक जो है जितनी भी बातें बताई गई है, सबको सब बातें क्लियर है बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम Alhamdulillah. ओके अल्हम्दुलिल्लाह। Ya sababa bit. अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबको सब बातें क्लियर है। ये दो आयतें है ना 15-16 जो है वो कनेक्टेड थे। अल्हम्दुलिल्लाह। हम आगे बढ़ते बहनों, आज के जमाने में बहुत जरूरी है कि हम इन आयतों को समझे जाने, है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब तौबा किसकी कबूल है वो भी हमको अल्लाह ताला जो है यहाँ पर बता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमारी तौबा तो ऐसी है बहनों कि हमारे इस्तगफार को भी इस्तगफार की जरूरत है ना। हमारी तौबा कैसी होती है बहनों, ऐसी खाली तौबा होती है ना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहते, मगर हमारे अस्तगफिरुल्लाह में तौबा ही नहीं रहता। यानी कि यहाँ वहां देखते हुए, चलते फिरते हुए ऐसे पढ़ रहे पर एहसास ही नहीं होता कि क्या पढ़ रहे और क्यों पढ़ रहे। क्या वो दिल में नदामत भी है? कितने बार हम लोग है ना चेहरे पे ऐसे मारते और बोले तौबा 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 कर लेते है ना। या तो फिर हम लोग को कुछ गीबत करनी होती है तो हम लोग बोलते तौबा तौबा तौबा, एक बात बोलती हूँ और बोल देते है ना। अस्तगफिरुल्लाह बोलना तो नहीं चाहिए पर फिर बोल देते। ऐसा भी हमने क्या क्या किया है ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला आज हमको बताएगा कि असल तौबा कैसे करना है, क्या शरायत है। हाँ, इंशाल्लाह ये सब बातों को हम जानेंगे। ओके, तो अल्लाह ताला जो है वो क्या कह रहा है, आयत नंबर हमारी कौन सी है, 17। 15-16 हो चुकी बहनों, 17 पर आ जाते हैं जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं कि सिर्फ तौबा, या बेशक तौबा जो अल्लाह ताला कबूल करेंगे, है ना, वो किसके जिम्मे है, वो अल्लाह पर है, अल्लाह के जिम्मे है। यानी तौबा का कबूल करना किसके जिम्मे है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है। ये आयत आज इतनी सोच में आ जाती हूँ ना बहनों, आप यकीन नहीं करेंगे। अभी हाल ही में शाहरुख खान उम्रा करने गया। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ पर बता रही हूँ, स्टेटस में लोग डाल रहे हैं कि इसकी तो उसका तो उम्रा कबूल ही नहीं होगा, इसका जब अकीदा सही नहीं है तो इसका उम्रा भी कबूल नहीं किया जाएगा। ये आ रहा है स्टेटस में लिख के। मैं इतनी हैरान हो रही हूँ कि या अल्लाह, ये सब फैसला करने वाला कौन, अल्लाह ताला है ना। अल्लाह उसको, अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह ने उसको इजाजत, अरे अल्लाह के हुक्म से ही सब होता है ना बहनों, वो खुद से तो नहीं जा सकता। यानी उसका मामला अल्लाह के साथ। मैं शाहरुख खान को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ कि हम लोग कितने जजमेंट दे देते ना बहनों कि ये जन्नती है, ये दोजखी है, उसका कबूल होएगा, उसका कबूल नहीं होएगा। हाँ, हम लोग ही सब बोल देते। देखो बहनों, ये सब अल्लाह के हाथ में, करेक्ट। अल्लाह ही है जो कबूल करने वाला। उसके दिल में सच्ची तौबा है कि नकली तौबा है, किसको मालूम। हो सकता है उसने तौबा दिल्ला कर लिया हो, है ना।
हो सकता है कि उसका मामला अल्लाह का मामला सही हो गया हो, हमको नहीं पता। हम लोग तो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, है ना। तो ये सब बातों का याद रखे कि तौबा का कबूल फरमाना किसके जिम्मे है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है। ओके, अल्लाह ही है जो फगीव करता है ना। और ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है कि उसने लोगों को नहीं रखा बीच में, वरना लोग तो बहनों हमेशा बीच में आके कभी भी बोलेंगे, है ना, तेरी तो तौबा कबूल ही नहीं है, तेरी तो नेकी कबूल नहीं है, तू तो ऐसी करती, तू तो वैसा करती, तेरे को क्या लगता है तू जन्नत चले जाएगी, कैसे कैसे लोग बातें करते हैं। राइट। तो अच्छा है कि लोग बीच में नहीं आ रहे, अच्छा है कि ये जिम्मा जो है वो अल्लाह पर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि सिर्फ तौबा कबूल करना किसके ऊपर है, अल्लाह के ऊपर है। किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो करते हैं बुराई, मगर किस हालत में, जिहालत में, यानी इग्नोरेंस में। यानी इंसान जो है वो अगर गुनाह कर भी रहा है ना, तो वो कैसे कर रहा है बहनों, वो जो है वो कैसे कर रहा है, भूल चुक से हो जाता है, यानी कि पता ही नहीं था कि गुनाह हो गया। अब ये जिहालत का मतलब जरा जान लेंगे बहनों, क्योंकि हम लोग से भी गुनाह होते हैं। हाँ, तो बहनों याद रखना कि कभी कभी हम लोग बैठ जाते हैं, भूल चुक हो जाती है, टीवी चल रहा होता है, जाते आते रहते हैं, या तो वहां बैठ जाते हैं, और भूल चुक से क्या हो जाता है कि गलती से हम भी वो देखना चालू कर देते, और फिर फौरन जो है ना पता चल जाता है कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ से बैठ गई, हाँ कैसे खड़े होके देखने लग गई। तो ऐसा इंसान जो है ना, उसके अंदर सरकशी नहीं है बहनों, समझ में आ रहा है। उसके अंदर वो नियत नहीं थी कि वो जान मुझकर प्लान कर कर टिकट और वो जो ना बुकिंग करके वो नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है। ये तो ऐसा हो रहा है कि अनजाने में हो गया, भूल चुक से हो गया, गलती से हो गया, उसका सरकशी की कोई नियत नहीं थी। उस वक्त में क्या होता है ना कहीं नफ्स पर कंट्रोल नहीं होता है, और नफ्स जो है वो गालिब हो जाती है ना। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो क्या करना चाहिए, फिर वो क्या कर ले, वो तौबा कर ले। ओके, और वो भी कैसे, जल्दी से, यानी इंस्टेंटली वो लोग क्या करते हैं, रिपेंट करते हैं। फौरन से जब पता चल जाता है कि अरे यहाँ गीबत चल रही थी, ओके, कुछ टॉपिक चल रही थी, सब भाई बहन सब बैठे थे, कुछ बातें होते होते कहीं से गीबत चालू हुई, और हम लोग भी भूल चूक से या गलती से बैठ जाते हैं, और फिर फौरन पता चल जाता है कि अरे क्या कर बैठी मैंने। हाँ, अचानक से यहाँ पे गीबत चालू हो गई, तो मैंने रोकी भी नहीं, मैं भी सुन रही हूँ, है ना, होता है ना कभी कभी। तो क्या करे बहनों, फौरन तौबा कर ले, फौरन रोके, क्योंकि इंसान को अंदर क्या होता है बहनों, बेकरारी होती है। अल्लाह क्या हो गया, अल्लाह क्या हो गया, क्या कहाँ बैठ गई यार, कैसे मैं बैठ गई, हाँ कैसे में से ये हो गया, क्यों मैं बैठ के वो सीरियल देखते बैठ गई, क्या जरूरत थी। देखो बहनों, हदीसों में आता है कि मुनाफिक के लिए गुनाह ऐसा होता है कि एक मक्खी बैठी थी, उसको उड़ा दिया। यानी मुनाफिक को गुनाह का एहसास ही नहीं होता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। मगर एक मोमिन जो होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि एक पहाड़ जो है ना, ओके, यानी जब वो गुनाह कर लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे सर के ऊपर किसी ने पहाड़ रख दिया। यानी उसको वो छोटा सा भी गुनाह जो है ना बहुत बड़ा लगेगा, वो टेंशन ले लेगा बहनों, उसको बेकरारी हो जाएगी, उसको है ना बेचैनी शुरू हो जाएगी कि अरे मेरी नमाज छूट गई, जान की नहीं अनजान में छूट जाती है। कितने बार फजर में सो जाते हैं, हालांकि सब अलार्म रख के सोते हैं और इतना बोल के सोते हैं, मगर फिर भी कभी छूट जाती है। तो एक मुनाफिक को कोई एहसास ही नहीं होता कि चलो भाई छुट गई तो छुट गई, चलता है, कजा कर लेंगे बाद में, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। मगर एक मोमिन जो होता है ना, वो बेकरार हो जाता है बहन, है ना, उसको इतना होता है, टेंशन हो जाता है कि अरे मेरी फजर कैसे छूटी, मेरी फजर कैसे छूटी, है ना। और वो फौरन अल्लाह की तरफ क्या करता है, पलट जाता है। तो ये फिर यही लोग है कि जिसकी तौबा अल्लाह ताला क्या करता है, कबूल करता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों पे क्या होता है, मेहरबान होता है। और है अल्लाह ताला कैसा, बहुत जानने वाला, खूब हिकमत वाला। समझ में आ रहा है बहनों। तो इंसान जो है ना अगर गुनाह हो जाता है, तो याद रखना हम क्या करें, फौरन शर्मिंदा हो जाए, हम नदामत करें, और फौरन जो है वो अल्लाह की तरफ पलट जाए। ये ना ये जो
तौबा होती ना बहनों, इट इज जस्ट लाइक अ बैंडेज। हाँ, जख्म हो गया, फौरन बैंडेज लगा दिए, है ना। फौरन हम लोग क्या होते हैं, खून को रोको, खून को रोको, फौरन कुछ लगाओ, है ना। तो फौरन एक बोलते ना, फौरन हमको कुछ करना है इसके बाद। ऐसा नहीं कि भाई लापरवाही छोड़ना यार, जितने गुनाह है, ये एक टीवी का सीरियल देखने से क्या होता है, या एक गीबत से क्या होता है, मेरे तो इतने गुनाह है, छोड़ना चलता है, सब चलता है। ऐसा नहीं हो बहनों हमारा रवैया, समझ में आ रहा है। फौरन हमको क्या करना है, तौबा करना है। ओके, गुनाह हो गया, हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, हाँ, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, हो जाता है ना, इंसान है, हो गया। मगर हमको क्या करना है, अल्लाह की तरफ फौरन पलटना है। देखो बहनों, याद रखना, छोटे गुनाह जो करते हैं ना, वो नेकियों के जरिए माफ हो जाते हैं। मगर जो कबीरा गुनाह होते हैं, वो बिना तौबा के, बिना माफी के, बिना तौबा के वो माफ नहीं हो सकते बहन। तो हमको ना सिर्फ शर्मिंदा होना है बहनों, मगर हमको क्या करना है, सुधरना भी है, इस्लाह भी करना है। और हदीसों में आता है बहनों कि अगर कोई इंसान अल्लाह की तरफ पलटता है, रुजू करता है, अल्लाह बहुत खुश होता है। यहाँ पे एक वाकया है ना बहनों, मैंने पहले भी बताई थी कि एक राजा था, दो बेटे थे। एक बेटा, बड़ा बेटा क्या बोलता है कि मेरे को मेरी पैसे, मेरा जो भी पैसा है मेरे को दे दो, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहने का, है ना। और वो पैसा लेके चले जाता है। छोटा बेटा बहुत वफादार, बहुत नेक बच्चा, बाप के साथ ही रहता है। ओके, और ये सब देखा कि बड़ा भाई ने क्या किया, पैसे लेके चला गया। अब क्या हुआ बहनों, कुछ दिन तक वो पैसे उसने खाए, इस्तेमाल करे, पर एक दिन क्या हुआ, पूरे पैसे खत्म हो गए। एक दिन उसको भी नादिम हुआ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे वालिद के साथ। तो उसने क्या किया, खत लिख के भेजा, किसको, उसके वालिद को, कि देखो मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं आना चाहता हूँ, तो क्या मैं आ सकता हूँ। तो वालिद ने कहा हाँ तुम जरूर आ सकते हो। और फिर वालिद ने क्या किया, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, पूरे महल को सजा दिया, रौनक से भर दिया, और धूमधाम पार्टी हो रही है। तो ये जो बेटा था, जो बहुत छोटा बेटा, वफादार बेटा, उसको हैरानगी हुई कि अब्बा ये क्या बात हुई, ये बेटा जो तुम्हारा नाफरमान था, तुम्हारे पैसे खा लिया, और तुम इसके ऊपर खुश हो रहे हो, है ना। तो बाप ने, वालिद ने क्या कहा कि बेटा, ये देखो, ये सब बातें याद रखना है कि बेटा देखो, जाते तो बहुत लोग हैं दुनिया में, हमारा साथ छोड़ के बहुत सारे लोग चले जाते, मगर लौट के आने वाले, वापस आने वाले बहुत थोड़े रहते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब पलट के आने वाले बहुत कम रहते हैं। और जो पलट कर आ जाता ना बहनों, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आ रहा है समझ में। तो यही वो रीजन है कि हमको भी क्या करना है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है। जब हम भी रुजू करते ना बहनों, अल्लाह बहुत खुश हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 से ज्यादा इस्तगफार करते थे बहनों, 70 बार से ज्यादा एक दिन में इस्तगफार करते थे। हालांकि वो मासूम थे बहनों, उनसे तो गुनाह ही नहीं हो रहे, फिर भी वो कर रहे हैं। क्यों पता है बहनों, हमारी तालीम के लिए, हमारी तरबियत के लिए। समझ में आ रहा है बहनों। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो कितने बार हमको लगता है कि अरे मैं तो कितनी अच्छी हूँ, हाँ। और कभी कुछ होता तो हम लोग मतलब हम लोग सोचते ही नहीं कि हम गुनहगार है, तो लगता है कि भाई मैं तो बहुत नेक हूँ ना। अगर किसी कुछ गुनाह, कुछ कुछ वबाल हुआ है, तो मेरी तरफ से नहीं हुआ है, मैं तो बहुत नेक हूँ, हमारे जहन में ये आ जाता है बहनों। याद रखना, हम लोग सब गुनेगार है, हम लोग सब जो है वो खताकार है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या बताया गया बहनों, कि जो मोमिन होता है ना बहनों, वो मौत से पहले मौत की तैयारी कर लेता है ना। वो अपना इस्तगफार हमेशा पढ़ता रहता है। अब नेक्स्ट आयत के साथ ही मैं इसको लेके चलती हूँ बहनों, कि नहीं है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कि नहीं है तौबा उन लोगों के लिए जो क्या करते हैं। अभी तौबा भी है, हाँ, मगर किन लोगों के लिए नहीं है, वो भी अल्लाह ने बता दिया है। दो बातें हैं बहनों, अल्लाह ताला जो है वो तौबा नहीं कबूल करता है। किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो करते रहते हैं बुराई, लगातार बुराई करते ही रहते हैं, यहाँ तक कि जब आ जाए उनमें से किसी एक को मौत, और फिर वो कहता है, क्या कहता है वो इंसान, कि बेशक अब मैं क्या करता हूँ, तौबा करता हूँ। समझ में आ रहा है, मतलब उसने जिंदगी भर तक
وہ کیا کر رہا ہے بہنوں, جان مجھ کر لگاتار گناہ والی زندگی جی رہا تھا بہن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی اس نے رجوع نہیں کیا, کبھی استغفار نہیں کیا, کبھی نہیں پلٹا, کبھی اپنے آپ کو نہیں سدھارا. اب جب وہ موت کو دیکھ لیتا ہے, غیب کو دیکھ لیتا ہے بہن, سمجھ میں آ رہا ہے, اس نے سب غیب کی باتیں دیکھ لیا, ملک الموت کو دیکھ لیا, فرشتوں کو دیکھ لیا, سب دیکھ لیا بہنوں. اس کی جو موت ہے وہ غلط, وہ حلق تک آ گئی بہنوں. حلق آنے سے پہلے پہلے اس نے توبہ کر لیا. ٹھیک ہے بہنوں, ایک بار روح مطلب نکل ہی رہی ہے اور ایک بار تم نے غیب کا سب دیکھ لیے, اب تم کتنا بھی توبہ کرو وہ توبہ قبول نہیں ہے. اس کا اگزامپل کون ہے؟ فرعون, ہے نا. فرعون توبہ کب کرتا ہے؟ جب وہ جبرائیل علیہ السلام کو, جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے, تو اب وہ بولتا ہے کہ اللہ میں اب قبول کرتا ہوں, پر ایسی توبہ قبول نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ زندگی بھر تک سرکشی کیا, ہے نا. اور کس کی قبول نہیں ہے؟ اور نہیں ہے توبہ قبول ان لوگوں کے لیے جو کیا کر رہے ہیں, جو مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہے, یعنی وہ پوری زندگی اللہ کو مانے ہی نہیں, ہاں, یا مشرک بہنوں, ہے نا, شرک کر رہے تھے پوری زندگی, اللہ کا انکار کر رہے تھے, اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے. اب جب ایسے لوگوں کو موت آ گئی اور انہوں نے توبہ ہی نہیں کیے, تو کیا ہوگا بہنوں؟ سوچو, ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے کیسا دردناک عذاب, ہے نا. اب اس کی مثال کون بولیں گے؟ ابو جہل, ہے نا. وہ بھی کیسا تھا بہنوں؟ کافر کی زندگی, مشرک کی زندگی, ہے نا. پوری زندگی اس نے اللہ کا انکار کیا, شرک کیا. اب اس نے جب موت بھی آئی نا بہنوں, تو وہ کیا بول رہا ہے؟ جب میرے کو تم لوگ کاٹو گے نا میری گردن کو, تو دیکھو یہاں سے کاٹنا. یعنی فرعون سے بھی بدتر تھا بہنوں یہ ولن. جو ہمارے نبی کی زندگی کا فرعون تھا, یہ سب سے بدتر تھا بہنوں, کہ اس کو پتا ہے کہ اس کو ابھی مارنے والے ہیں تلوار سے. ابھی بھی وقت تھا نا کہ توبہ کر لیتا, کلمہ پڑھ لیتا. الٹا وہ کیا بول رہا ہے کہ جب تم میری گردن کاٹو گے نا, تو پلیز یہ پوری گردن چھوڑ کے نیچے سے کاٹنا, میری گردن بڑی دکھنی چاہیے. ہاں, وہاں پہ بھی اس کو کیا فکر ہے کہ میری گردن لمبی دکھے لوگوں کو. اور وہاں بھی وہ کیا بول رہا ہے پتا ہے؟ کہ میں میرے باپ داداؤں کے مذہب پر جا رہا ہوں. اس کو اتنا اس بات پر کیا تھا؟ اکڑ تھا, ضد, ہٹ ڈرمی, غرور, تکبر. دیکھو بہنوں کس بات پہ ہے کہ میں کس پر جا رہا ہوں؟ میرے باپ داداؤں کے مذہب پر جا رہا ہوں. اور ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے بہنوں؟ کوئی معافی نہیں ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے, اور بہت ہی دردناک عذاب ہے. تو اس سے کیا پتا چلا بہنوں؟ مومن جو ہے نا وہ ہمیشہ توبہ کرتا رہتا ہے, گناہ کو بہت بڑا سمجھتا ہے, معمولی نہیں سمجھتا. اوکے, الحمدللہ. اور کیا پتا چلا بہنوں؟ موت سے پہلے پہلے توبہ استغفار ہم کر کے رکھے, تیاری کر کے رکھے. دیکھو بہنوں, ایک لوگ ہوتے ہیں, اب دیکھو بہنوں کبھی کبھی ہم کو بھی لگتا ہے نا کہ اللہ میں کتنی گنہگار ہوں, کتنی گنہگار ہوں, ہمیشہ گناہ کرتی رہتی ہوں, ہے نا. تو یاد رکھنا بہنوں کہ ایک جو لوگ ہوتے ہیں جو بہت گناہ سے بچتے رہتے ہیں, ہمیشہ گناہ سے بچتے رہتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, وہ کون ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف نبی, ہے نا, جو معصوم ہوتے ہیں. دوسرا, جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ پر دلیر رہتے ہیں, گناہ پر ہٹ ڈرمی رہتی ہے, اور وہ کون تھا؟ شیطان, ہے نا. شیطان کیا کرتا ہے بہنوں؟ گناہ کرتا ہے اور اس پر وہ رہتا ہے, دلیر رہتا ہے, ہٹ ڈرمی رہتی ہے اس پر, ہے نا. تو ہم نبی کے کیٹیگری میں بھی نہیں آ سکتے, اوکے, اور نہ شیطان کی کیٹیگری میں جائے. تو ہم کیا کر سکتے نا بہنوں؟ ہم سے بھی گناہ ہوں گے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا بہنوں. ہم لوگ ابن آدم ہے, آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی تھی, رائٹ. تو ہم لوگ ابن آدم ہے بہنوں, تو ہم کو بھی, ہم سے گناہ ہوں گے, پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ پچھتانا ہے. گناہ کر کے کیا کرنا ہے؟ پچھتانا ہے, احساس لانا ہے. کتنے بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کو انجوائے کرتے ہیں, گانے چل رہے, میوزک چل رہا ہے, ڈانس چل رہا ہے, ہم کو پتا ہے یہ گناہ ہے, پر ہم بھی انجوائے کرتے ہیں وہاں پہ, تالیاں مارتے, ناچتے, گاتے. ہم اگر اس گناہ کو انجوائے کر رہے, مطلب ہم نے اس گناہ کو گناہ ہی نہیں جانا, ہے نا. تو یہ غلط ہو جائے گا بہن. آ رہا سمجھ میں؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ گناہ کو گناہ سمجھنا ہے, اس کا احساس لانا ہے, شرمندہ ہونا ہے. اگر کر بھی رہے تو گلٹی فیلنگ, ندامت, روتے ہوئے کرو بہن. پر دیکھو بہنوں,
कितने बार हम लोग मजबूर हो जाते कि ऐसी जगह पे है जहाँ पे गाने बज रहे, हम नहीं चाहते पर मजबूर है बहनों। तो अगर मैं वहां पे, अगर मेरे दिल में वो नदामत रहेगी, गिल्टी फीलिंग रहेगी बहनों, तो याद रखना मैं उस गुनाह को एंजॉय नहीं करूंगी। यही देख रहा है ना अल्लाह, कि वो सिचुएशन में है मगर वो एंजॉय नहीं कर रहा है, वो खुश नहीं हो रहा है, वो गुनाह को गुनाह समझ रहा है। तो ऐसा बंदा अल्लाह को बहुत पसंद है। समझ में आ रहा है बहनों? तो हमारी नीयत जो है ना वो देखे क्या है। गुनाह पे मैं खुश तो नहीं हो रही हूँ, गुनाह को गुनाह समझे, जाने, नदामत करे, रातों को उठ के रोए कि या अल्लाह मेरे से गुनाह हो गया, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगी अल्लाह। और हम क्या करें, कफ्फारा करें, यानी कि कुछ नेकी का काम करते चले जाए। गुनाह तो मैंने कर ली है ना, मैं नदामत कर ली, मैंने रोई, कभी नहीं करूंगी अल्लाह, मगर मैं उस पर क्या करूं, उसका कफ्फारा दूं। यानी समझो मैंने जिंदगी भर तक नमाज नहीं पढ़ी, हाँ फर्ज नमाज मैंने कभी पढ़ी नहीं, अब मुझे एहसास हो रहा है मैं अल्लाह से दिल से तौबा कर रही हूँ। देखो बहनों, इंसान, मैंने कहा ना, कबीरा गुनाह माफ हो जाता है जब बंदा दिल से माफी मांगता है और रोता है, तो बड़े से बड़ा गुनाह भी बहनों, याद रखना, मौत से पहले पहले बड़े से बड़ा गुनाह क्यों ना हो, शिर्क का, और काफिर, अगर मैं कोई इंसान काफिर भी क्यों ना हो, हाँ शिर्क क्यों ना करता हो, वो मौत से पहले पहले अगर सच्चे दिल से माफी मांग ले तो अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। हम लोग बोलते ना शिर्क की कोई माफी नहीं, शिर्क की कोई माफी नहीं, यानी शिर्क की कोई माफी नहीं मतलब क्या, अगर वो शिर्क करता करता ही मर गया तो कोई माफी नहीं, दैट इज राइट। मगर दुनिया में वो हयात है बहनों, और अगर कभी भी उसे एहसास हो जाए कि अरे मैं अल्लाह का इनकार कर रही थी, मैं शिर्क कर रही थी, मैं जिना कर रही थी, मैं शराब पी रही थी, बड़े बड़े गुनाह है ना ये, तो अगर मैंने सच्चे दिल से इसकी माफी मांग ली तो अल्लाह ताला क्या करेगा, माफ कर देगा। तो एक बंदी है जो जिंदगी भर तक नमाज नहीं पढ़ी, अब एहसास हो गया, तौबा तिल्ला कर दी, सब अल्लाह ताला माफ कर देगा, पर वो कफारे के तौर पे क्या करेगी, नफल नमाजें पढ़ेगी, सुन्नतों के नमाजों का एहतमाम करेगी, ताकि कल जब तोला जाएगा नमाजें तो उसकी नफल नमाजें, सुन्नत नमाजें उसको काम आएगी। रोजा नहीं रख रही थी, अब कजा रोजे गिन कर वो रखेगी, ताकि रोजा नफल रोजे उसको काम आ जाए। समझ में आ रहा है? उसी तरह जक़ात है, उसी तरह उसके, अगर समझ जाओ बहनों, ये तो हुकूकुल्लाह के बारे में है, हुकूकुल इबाद है ना। अगर मैंने जिंदगी भर तक मेरे शौहर का, मेरे बच्चों का, किसी का भी दिल तोड़ा, हाँ मैंने किसी का हक अदा नहीं किया, तो बहनों याद रखना मैं वो फलां शख्स के पास जाके माफी मांगू कि मुझे प्लीज माफ कर दे, मैंने तेरा दिल बहुत तोड़ी, मेरे को नहीं मालूम था, प्लीज मुझे माफ कर दे। क्योंकि बहनों याद रखना, जब तक बंदे माफ नहीं करेंगे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों में देखो क्या हमारी अंदर कमी पेशी हो रही है। अब मैं एग्जाम्पल बोलती हूँ बहनों, कि कभी होता है ना कि बच्चे जो है, हाँ बच्चा, मतलब एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा है और मैंने उसकी आइसक्रीम छीन ली और खा ली, हाँ ये सोच के कि भाई वो बच्चा तो चलो नाराज हुआ ही हुआ, चलेगा, मुझे क्या करना है, मगर क्या वो बच्चे की माँ मेरे को छोड़ेगी? हाँ, बच्चा तो कुछ नहीं कर रहा है, बच्चा तो चुप हो गया, मगर क्या वो बच्चे की माँ मेरे को छोड़ेगी जब पता चलेगा कि मैंने उसकी आइसक्रीम छीनी और जबरदस्ती खा ली? हाँ, वो बच्चे की माँ मेरे को कभी माफ नहीं करेगी और छोड़ेगी भी नहीं। उसी तरह बहनों, अगर मैंने बंदों के हुकूक को अदा नहीं किया तो याद रखना अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है बहनों, हमेशा डरते रहना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है सबसे माफी तलाफी हम कर ले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर कोई इंसान गुनाह नहीं करता है बहनों, हाँ एग्जाम्पल ये हदीसों में आता है कि अगर कोई ऐसे लोग है या कौम है जो गुनाह नहीं करेंगे ना बहनों, तो अल्लाह ताला पता है क्या बोलता है, मैं ऐसी कौम लाऊंगा जो गुनाह करेगी और माफी मांगेगी। यानी अल्लाह को बहुत पसंद है बहनों जो लोग गुनाह करते। गुनाह देखो बहनों हमारे हाथ में नहीं है ना, जितना हो सके मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ, नो डाउट, मगर हो जाते हैं ना। तो अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है जो क्या करती है, इस्तगफार करती है। जन्नत में भी देखो बहनों वही बंदे जा रहे हैं ना जो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस्तगफार कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला बोल रहा है कि अगर लोग गुनाह नहीं करेंगे तो मैं ऐसी कौम को लाऊंगा जो गुनाह भी करेगी और फिर बाद में तौबा भी करेगी।
تو ہم کیا کریں گے؟ راتوں کو اٹھے روئے، ہمارا ایک آنسو بہنوں جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہے۔ وہ آنسو کس کا کام کر رہا ہے پتا ہے بہنوں؟ جیسے کہ ہمارے پاس اریزر ہوتا ہے نا، ہاں ہم لوگ کیا بولتے ہیں، اریزر ہے نا، اریزر بولتے ہیں نا جس کو جو کچھ لکھتے ہیں تو پوچھ دیتا ہے پورا، ہے نا، ڈسٹر کا کام کرتی ہے، اریزر کا کام کرتی ہے الحمدللہ۔ جیسے کہ سوئی دھاگا ہوتا ہے نا بہنوں، کپڑا پھٹ گیا ہے مگر اس کو جوڑنے والی کیا چیز ہے؟ سوئی دھاگا۔ تو بس ہمارے بھی گناہ ہو گئے، اب ہم بھی کیا کریں بہنوں؟ اس کو سوئی دھاگا سے جیسے جوڑ رہے ویسے ہم استغفار توبہ سے اس کو جوڑ دیں گے، ہے نا، تو نجات ملے گی بہنوں۔ اور اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے بہنوں کہ اللہ نے توبہ کے دروازے رکھا۔ اگر توبہ کے دروازے نہیں ہوتے تو سوچو کیا ہوتا بہنوں، کتنی مشکل پڑ جاتی۔ تو اللہ کا کیا ہے بہنوں؟ بہت احسان اور کرم ہے الحمدللہ۔ اور بہنوں یاد ہے نا کہ یوسف، ہمارے جو یونس علیہ السلام تھے، جو مچھلی کے پیٹ میں پڑ رہے تھے نا، آیت کریمہ الحمدللہ، ان کے بارے میں بھی آپ لوگ کو پتا ہی رہے گا کہ کیا ہوا تھا بہنوں۔ یونس علیہ السلام غصے میں کیا کیے تھے؟ اپنے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہے نا، کیا بول کے کہ تو مطلب اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اور انہوں نے اپنے قوم کو کیا بولے کہ اب تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور وہ چلے گئے اللہ کے حکم آنے سے پہلے پہلے، ہے نا، یہ واقعہ سب کو پتا ہی رہے گا۔ مگر وہ قوم نے کیا کی؟ ہاں، توبہ استغفار کی، ہے نا، اور اللہ نے دیکھو وہ ایک ہی قوم ہے کہ جس پر سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عذاب کو ہٹا دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہے نا۔ تو سوچو بہنوں، اللہ کو یہ دل سے ندامت استغفار توبہ یہ بہت پسند ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے نا، 99 قتل کیے تھے بہنوں اس نے، ایک اس نے جا کے بولا بھی تھا کسی اسکالر کو، ایک عالم کو، کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے جب سنا کہ کیا تم نے 99 جو ہے وہ مرڈر کیے، ارے تم تو بچ ہی نہیں سکتے، ہے نا، تو اس نے کیا کیا؟ اس کو بھی مار دیا، مطلب غصے میں آ گیا۔ کس غصے میں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ تیری توبہ ہی نہیں ہے، تو اس غصے میں دیکھو وہ جو لاسٹ جو موت جس نے مرڈر کیا، وہ بھی کیا غصہ تھا کہ اس کو بول رہا ہے کہ نہیں تیری توبہ نہیں ہے، تو اس نے اس کے وجہ سے اس نے اس کو مار دیا جان سے، ہے نا، 100 مرڈر کر لیا اس نے، اور پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ اسکالرس کے پاس جا ہی رہا ہے کہ بھائی کوئی تو ہے جو مجھے بتائے کہ میری معافی کیسے ہوگی، میری معافی کیسے ہوگی۔ تو دوسرا جو عالم ملتا ہے وہ کیا بولتا ہے؟ تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں پہ اصلاح ہوتی ہے، وہاں پہ تم جا کے توبہ استغفار کرو، وہاں پہ سدھر جاؤ، ہے نا، بستی کو چھوڑ کے جاؤ۔ ایک جگہ جب تمہارا نام بدنام ہے، تم کو یہاں پر نہیں ہو رہا ہے، تو تم دوسری جگہ چلے جاؤ۔ تو جب وہ جاتا ہی رہتا ہے کہ رستے میں موت آ جاتی ہے، تو بہنوں وہاں بھی ابھی اس نے کچھ کیا ہی نہیں بہنوں، ہے نا، اس نے ابھی تک اپنے آپ کو سدھارا نہیں، نماز نہیں، کچھ نہیں، وہ صرف ایک نیت بہنوں، ندامت کی نیت، ہے نا، اس کے دل میں وہ کانشیس آ گیا کہ مجھے توبہ اللہ کرنا ہے، اور اللہ نے کیا کیا بہنوں؟ اس زمین کو ماپا، ہے نا، یہ حدیث میں پورا واقعہ ہے بہنوں، زمین کو ماپا، فرشتوں کو کہا کہ زمین کو ماپو، کس کے نزدیک ہے وہ؟ تو کہا وہ فلاں بستی کے نزدیک تھا جہاں پہ اس کو جانے کا تھا استغفار کرنے، تو کہا کہ اس کے لیے اس کو کیا کر دو؟ معاف کر دو، ہے نا۔ تو بہنوں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیا پسند ہے؟ معافی، ہے نا، اصلاح کرنا۔ اب دیکھو بہنوں ایک راجا کا قصہ بتاتی ہوں کہ ایک راجا نے ایک بار کیا کیا کہ ایک موتی کو پانی میں ڈال دیا، موتی کو کیا کیا؟ پانی میں ڈال دیا، اور کہا کہ کوئی بھی اس موتی کو لے کر آئے گا نا پانی سے تو میں اس کو انعام دوں گا، اوکے، مگر شرط کیا ہے؟ اس کو بھیگنا نہیں چاہیے۔ اس نے کیا کیا؟ پانی میں موتی کو ڈال دیا، اور کیا بولا کہ تم کو یہ موتی لانا ہے، پر شرط کیا ہے؟ بھیگنا نہیں ہے۔ تو جتنے بھی لوگ وہاں کھڑے تھے وہ راجا کی بات سن کے بولے یہ کیا بات ہوئی، ہاں ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی سب بحث کرنے لگے، سب لڑنے لگ گئے کہ ایسا کیسے ہوگا راجا، ہاں تم کہہ رہے ہو پانی سے موتی کو لاؤ اور بنا بھیگے لاؤ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ سب یہاں بحث کر رہے ہیں، مطلب ایک بولتے نا ڈسپیوٹ ہو رہا ہے۔ اتنے میں کیا ہوا، ایک جو منسٹر تھا وہ پانی میں ڈبکی لگا دیا، اوکے، پانی میں ڈبکی جگہ لگا کے اس نے موتی لا کے دے دیا۔ اب باقی سب تو بحثوں میں لگے، تو میں لگے، ایک نے کیا کیا؟ فوراً ڈبکی لگا کے وہ موتی کو واپس لا کے دے دیا۔ تو اس کو سب نے جو ہے وہ حیران ہو گئے، اور راجا اس کو دیکھ کے کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا۔ ہاں، راجا کیا ہو گیا بہنوں؟ اس کو دیکھ کے خوش ہو گیا۔ تو راجا نے کہا تھا کہ میں نے تو دیکھو کیا کہا تھا کہ موتی کو لاؤ اور بھیگو بھی مت،
تو तूने तो ऐसा नहीं किया। तो मिनिस्टर देखो बहनों क्या बात बोलता है, मिनिस्टर बोलता है कि तुमने कहा मोती लाओ और भिगो मत, सही है, जो मेरे बस में था वो मैंने किया, जो मेरे बस में नहीं था मैं कुछ नहीं कर सका, है ना। अल्लाह भी क्या चाहता है कि हम ये दुनिया में कैसे जिए, पाक साफ रहे, है ना, गुनाहों से बचे, मुत्तकी वाली जिंदगी जिए। मगर हम भी बशर है ना बहनों, कहीं ना कहीं हमसे भी गलत हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे हम भी हो जाते हैं। तो हम भी क्या करें बहनों, अल्लाह वही देख रहा है ना, कौन जद्दोजहद कर रहा है, किसके अंदर नदामत है, गिल्टी फीलिंग है। जो हमारे बस में है हम करें, जो हमारे बस में नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला भी क्या देख रहा है, वही देख रहा है बहनों। और ये राजा भी खुश हो गया और उस मिनिस्टर को तोहफा दे दिया, इनाम दे दिया। उसको सिर्फ देखना था कि कौन क्या करता है, और इस बात से वो बहुत खुश हो गया कि हाँ सही बात है ना, जो उसके बस में था वो कर सका, मोती लाने का था वो ला सका, मगर बिना भीगे लाओ, ये दुनिया में जी के गुनाह ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग फरिश्ते नहीं है ना, हम लोग इंसान है, हमसे गलतियां होंगी ही होंगी। माइंड सेट कर ले, जानबूझ के नहीं करना है बहनों, अनजाने में हो रहा है ये सब, भूल चुक से हो रहा है, गलती से हो रहा है। तो ये सब अल्लाह ताला देख रहा है ना किसकी नीयत क्या है, जो हठधर्मी से कर रहा है, जो जान के कर रहा है, वो फिर उसकी पकड़ है बहनों। यानी आज जो है ना बहनों, कितनी बातें ऐसे जो हम लोग को पता है, हाँ, फिर भी हम लोग कर बैठते हैं। तो ये क्या हो रहा है पता है बहनों, कि कहीं ना कहीं हमारे को जो अंजाम होने वाला है, जो बुरा अंजाम इसका होने वाला है, उसकी फिक्र नहीं होती। वैसा भी नहीं करना है बहनों, समझ में आ रहा है, फिक्रे करे कि भाई अगर मैं ये गुनाह करूंगी तो इसका क्या अंजाम है ना। तो ये सब बात को भी हम क्या करें, जहन में याद रखें। फिर आयत नंबर 19 और 20 को मैं साथ में ले लेती हूँ इंशाल्लाह। मगर यहाँ तक जितना भी समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना। हाँ, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, समझा रहे बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, माशाल्लाह, हाजा मिन फजली रब्बी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रब का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आयत नंबर 19 और 20 में बहनों यहाँ पर वुमेन्स राइट के बारे में आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो है जाहिलियत के दौर में क्या क्या हो रहा था, क्योंकि मैंने कहा ना मदीने में रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, बहुत जाहिलियत थी बहनों। यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे किसी इंसान का अगर इंतकाल होता तो उसकी विरासत को तकसीम करते, उसी तरह वो लोग क्या करते, उसकी बीवियों को भी तकसीम करते बहन। यानी औरत का कोई मकाम, कोई मर्तबा ही नहीं था, कोई इज्जत, कोई वैल्यू ही नहीं थी बहनों। जाहिलत के दौर में जब भी शौहर का इंतकाल होता तो लोग क्या करते, उसकी औरत औरत को भी उसकी विरासत का हिस्सा समझ के उसको भी क्या करते, जैसे माल को हम लोग डिवाइड करते हैं ना, उसी तरह औरत प्रॉपर्टी थी बहनों, और उसको भी क्या करते, बांट देते। क्या होता था ना बहनों, कि जो उसके सौतेले बेटे होते, ओके, सग्गा बेटा तो उसकी उसको कुछ नहीं करता, सग्गा बेटा ओके, वो तो सगी माँ को कुछ नहीं करता। मगर जो बेटे होते ना बहनों, वो सौतेली माँ को, ओके, सगी माँ के अलावा जो माएँ होती थी, उन पर वो लोग क्या करते थे, चादर डाल देते थे। समझ में आया। जैसे किसी का इंतकाल होता तो सगी माँ के अलावा जो सौतेले माएँ होती, उन पर वो लोग चादर डाल देते और क्या बोलते कि ये हम मेरी है, क्या बोल देते, ये मेरी है। और इतनी गुमराही थी बहनों उस वक्त में, नाउजबिल्ला। फिर वो लोग उस माओ से, सौतेली माओ से निकाह करते थे, उसके साथ सब कुछ करने का करते थे। यानी इतनी जाहिलियत, इतनी ज्यादा गुमराही थी बहनों। मगर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम आने के बाद ऐसा इनकलाब आया बहनों, अल्लाह ने ऐसी इस्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह, ये जाहिलियत से निकाला उनको, और सहाबाओं को क्या बनाया, लीडर बनाया, इमाम बनाया। ये तब्दीली देखो माशाल्लाह कैसे आई बहनों, कुरान के जरिए से आई। औरत को राइट्स दिया गया,
बताया गया कि नहीं, औरत कोई विरासत नहीं है कि तुम तकसीम कर रहे हो, नहीं, औरत क्या है उसके राइट्स बताए गए। और जो भी इनकी जिंदगियों में जाहिलियत हरकतें थी वो सबको भी अल्लाह ताला ने क्या किया, बाहर निकाला। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होगा बहनों, इंशाल्लाह। अगर हमारी जिंदगियों में कुरान आएगा तो इंशाल्लाह हम भी जाहिलियत से बचेंगे, इग्नोरेंस से बाहर आएंगे। हाँ, इंशाल्लाह। और क्या होगा बहनों, हमारे औरतों को क्या इज्जत, क्या मकाम दिया गया, वो भी हम जानेंगे। ओके, इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं, कहाँ गया हमारा सबक। यस, या अय्युहल लजीना आमनू। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए लोगो जो ईमान लाए, यानी हमसे कहा जा रहा है, ईमान वालों से कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि नहीं है हलाल तुम्हारे लिए कि तुम औरतों को क्या कर रहे हो बहनों, तुम औरतों को इनहेरिट कर रहे हो, यानी कि वारिस बन जा रहे हो, किसके, औरतों के, जबरदस्ती। यानी कि तुम क्या करते हो, औरत को जबरदस्ती अपने पास रख रहे हो, यानी कि तुम वारिस बन जाते हो औरतों के, क्या, जबरदस्ती। ये ऐसा तुम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो ये तो आम बात है ना, ये बात तो पहले जमाने के लिए खास है क्योंकि वो जमाने में ऐसा हो रहा है। और जो नेक्स्ट बात आ रही है यहाँ से, वो आम बात है। वो क्या बात हो रही है बहनों, और अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं तुम रोके रखो उन्हें, यानी कि औरतों को जबरदस्ती तुम अपने घर में मत रोको, ताकि तुम क्या करो, ताकि तुम उनसे क्या ले लो, यानी कि यू तुम ले लो बाज उनमें से जो तुमने उनको क्या दिया है, यानी कि जो तुमने उनको मेहर दिया है। अब मैं समझाती हूँ क्या हो रहा था बहनों यहाँ पे। यहाँ पे कोई कुछ मर्द जो थे, ओके, वो क्या हो रहे थे, अपनी औरतों को पसंद नहीं करते थे। ओके, कहीं ना कहीं शादी के बाद औरतों को पसंद नहीं कर रहे, नहीं चाह रहे कि भाई इसके साथ रहना, और फिर क्या कर रहे हैं बहनों, ना उसको तलाक दे रहे। तलाक, पता है ना कि तलाक देंगे तो मेहर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब उनको मेहर नहीं देना है उनको, और ना ही उनको तलाक देना है। तो वो लोग क्या करते थे बहनों, औरतों को लटका के रखते थे। समझ में आ रहा है? औरतों की इज्जत नहीं करते थे, उस पर जुल्म करते थे, उसको अपने घरों में ऐसे ही रखते थे, मगर उसके राइट्स जो थे वो फुलफिल नहीं करते थे। यानी औरतों की जिस्मानी राइट्स होते हैं, उसके फाइनेंशियल राइट्स होते हैं, उसको पैसों की जरूरत होती है, ये सब होता है ना। ये आयत जो है ना बहनों, ये अभी भी हो रहा है ना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला साफ कह रहे हैं कि तुम जो है ना वो औरतों को मत रोके रखो, जो नहीं, ताकि तुम उनसे ले लो जो तुमने उनको दिया, यानी मेहर जो है। तुम्हारी नीयत क्या है कि तुम उसको ऐसा रखो, उस पे इतना जुल्म करो कि वो औरत जो है ना वो तंग आके क्या बोल दे, या तो वो बोले कि चल भाई मैं वो खुला ही दे दे। अब खुला जहाँ पे होता है वहां पे मेहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वो औरत जो है, आदमी जो है, औरत को मेहर देने की जो है वो नौबत ही नहीं आएगी। तो वो लोग क्या करते थे, औरतों को इतना तंग करते थे ताकि औरत खुद जो है वो क्या हो जाए, वो जो है खुला लेके भाग जाए। या तो फिर क्या करते थे कि भाई हम लोग जो है ना, तू एक काम कर, इतना सताएंगे कि ताकि तू क्या करे, मेहर को माफ कर दे। समझ में आया? तो दे ये लोग ये सब कामें करते थे। तो अल्लाह ताला वहां पे उनको यही कह रहा है कि तुम ऐसे काम मत करो, जो तुमने उनको दे दिया है जबरदस्ती का ये सब काम मत करो। मगर कब ले सकते हो तुम मेहर, रीजन बता दिया कि तुम मेहर ले सकते हो उस औरत से अगर वो क्या कर देती है, फहश काम कर देती है खुल्लम खुल्ला। अगर वो खुली खुली बेहयाई का काम कर देती है तो ऐसे औरतों से तुम जो है वो तलाक दे सकते हो। और मेहर जो है वो देना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो शादी का जो अग्रीमेंट था उसने उसमें क्या कर दिया, धोखा दे दिया, है ना। उसने फहश काम कर ली, लिविडनेस कर दी। तो ऐसी औरतों को कोई भी आदमी छोड़ सकता है, तलाक दे सकता है, बिना मेहर दिए। समझ में आ रहा है? और अगर वो औरत ने मेहर, उसने जिना नहीं करी, फिर अगर तुम उसके साथ रहना नहीं चाहते हो तो उसके साथ फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, तलाक दे के उसको मेहर दो। उसको लटकाओ मत, उसको सताओ मत, उसको अजियत मत दो। बेटर चीज क्या है, अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी औरतों के साथ तुम जिंदगी गुजारो, गुजर बसर करो, लिव विद देम, कैसे, भले तरीके से।
क्या जरूरत आ गई? तो मतलब शादी के नए नए में अक्सर होता है ना कि शादी के नए नए में मालूम लड़के लोग बोलते हैं कि नहीं, जो लड़की को मैं पसंद कर रहा था ये ऐसी नहीं है ना, मैं सोचता था ये ऐसी रहेगी, हमारे तो सेम जो है, हमारा वो सेम नहीं है, हमारे मैचिंग नहीं हो रहा है, हमारे अलग अलग है ना थिंकिंग है, हमारे अलग अलग जो है वो सोच है ना। तो कहीं ना कहीं लोग, फिर लड़के लोग क्या करते हैं, औरतों के राइट्स फुलफिल नहीं करते, उसके साथ अच्छा सुलूक नहीं करते, उसके राइट्स पूरा नहीं करते, उसके साथ जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखते है ना। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला तो कितने कितना बेहतरीन समझा रहे हैं बहनों, कि फिर अगर तुम नापसंद करते हो ना उसको, तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला जो है वो बता रहा है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि मुमकिन है कि परहैप्स हो सकता है कि जिस चीज को तुम नापसंद करते हो, अल्लाह ताला उसमें क्या डाल दे, बहुत ज्यादा खैर डाल दे। यानी अल्लाह ताला ये बात कह रहा है बहनों, अल्लाह ये बात का वादा कर रहा है तो ये जरूर होकर रहेगा। अगर तुम अल्लाह की रजा के लिए उस रिश्ते को लेके चलते हो, उसकी बुराई को दरगुजर करते हो, यानी इंसान अगर समझ जाओ बहनों, वो फिजिक मतलब क्या होता है ना, लड़के लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, अरे मैं सोचता था ये इतनी खूबसूरत रहेगी, गोरी रहेगी, ऐसी रहेगी, वैसी रहेगी, मतलब कुछ छोटी मोटी बातें ही रहती है ना। इसकी वजह से जो है वो रिश्ता मत तोड़ो, है ना। बुराई को छोड़कर उसकी अच्छाई को देखो, अच्छाई, उसकी अच्छाई को सामने रखो, है ना, ये समझा जा रहा है। और हो सकता है कि अल्लाह ताला जो चीज हमको नापसंद है वहां पे खैर के रास्ते खोल दे, यानी तुमको नेक औलाद हो जाए, और वो नेक औलाद तुम्हारी आंखों की ठंडक हो जाए, तुम्हारे नेकियों का जरिया मिल जाए, कल आखिरत में तुम्हारी नजात हो जाए, है ना। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बता रहा है कि घर टूटने से बचो, फैमिली लेकर चलो, कंप्लेन मत करते रहो, अरे इसको खाना नहीं आता, इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में सब सुधर जाते हैं ना। शुरू शुरू में तो किसी को घर संभालने नहीं आता है, हाँ। अगर समझ जाओ वो औरत बेहया नहीं है, अगर वो औरत कोई मैरिटल अफेयर्स नहीं रख रही है, अगर वो औरत नच्छी है, सिर्फ उसको छोटे मोटे काम नहीं आते, या देखने में इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लो, अल्लाह ताला बहुत खैर का मामला करेगा। देखो बहनों, सबसे बेहतरीन मता, यानी कोई बेहतरीन चीज अगर दुनिया में है, वो नेक बीवी है बहनों। तो ये नेक बीवी के साथ कभी जुल्म नहीं करना चाहिए। यानी आजकल के लड़के या तो हीरोइन रखते हैं अपनी बीवियों को, एक्सपेक्ट करते हैं वो हीरोइन हो जाए, या तो फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग कुछ भी नहीं है और उसको पैरों की जूती जो है ना उसको ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं। तो याद रखना, ना हीरोइन की तौर पे रखना है, ना जूती बना के रखना है, औरतों कैसे रखना है, इज्जत के साथ नॉर्मली रखना है बहन। और याद रखना, कभी कभी खैर में शर होता है और शर में खैर होता है, हमको नहीं पता है ना, मगर अल्लाह ताला बता रहे कि शैतान का तख्त है ना हर रात को पानी में, यानी शैतान की मीटिंग होती है बहनों, और वो सबसे ज्यादा खुश कब होता है, जब वो सुनता है ना अपने चेलों से कि उसने मियाँ बीबी को अलग कर दिया, हाँ। तो ऐसे चेले के साथ वो क्या होता है, बहुत खुश होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अल्लाह ताला क्या बता रहे कि ऐसा जो है ना, तोड़ना, घर तोड़ना मत करो। ये छोटी छोटी बातों में आज तलाकें हो रही है ना बहनों, कि मम्मी इसको ये नहीं आता, मेरे को नहीं रहने का, मम्मी ये ऐसी है, इसको मेरे को नहीं रहने का। यानी छोटी छोटी बातों में बहनों आज तलाकें हो रही है। समझ में ना, कुछ टाइम लगता है एडजस्ट होने में, कंप्लेन ना करे। औरतें भी बहुत जल्दी हम लोग कंप्लेन करना चालू कर देती है, हमको नहीं पता कि अभी अभी समझ में नहीं आता है, अडेप्ट नहीं करते, घर सिटी है ना सब अडेप्ट नहीं करते। पर जाने जाने हो सकता है कि अल्लाह ताला उसमें क्या करे, खैर का मामला करे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर तुम इरादा करते हो कि तुम तब्दील करो, बदल दो बीवी को दूसरी बीवी से, तो तुम तब्दील कर सकते हो, मना नहीं है। मगर जो कुछ भी तुमने उसको दिया है ना, यानी कि अगर तुमने उसको खजाना ही क्यों ना दे दिया, यानी उसको ढेरों माल ही क्यों ना दे दिया, तो मगर उससे वो मत लो। अगर तुमको लगता है कि नहीं, कुछ भी एडजस्ट करके भी बीवी के साथ नहीं रह सकता, दूसरी बीवी करना चाहते हो, तो वो बीवी को जब तुम छोड़ रहे हो तो उससे कुछ भी नहीं लोगे। और अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि क्या तुम लेना चाहते हो उससे वो
بہتان اور کیا کھلی گناہ سے. یعنی کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ میں نے کہا نا کہ وہ زمانے میں کیا کرتے تھے بہنوں, ابھی تو ہم لوگ کو ہے نا یہ پتا نہیں ہے, وہ زمانے میں نا بہنوں مہر بہت بڑی بات ہوتی تھی. ہمارے نبیوں کا اگر ہمارے ہسٹری پڑھو گے نا تو صحابیوں کا بھی مہر کافی زیادہ ہوتا تھا. وہ جو سونا چاندی جو ہوتا تھا, آج کی اگر ہم لوگ کیلکولیٹ کریں گے تو لاکھوں روپے ہوتے ہیں بہنوں. تو وہ زمانے سے مہر بہت بڑی رقم ہوتی تھی. اور کوئی بھی آدمی جو ہے نا واپس سے مہر دو بولے تو جان پہ آئے گا نا اس کو. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, اپنے مہر کو بچانے کے لیے عورت پر بہتان لگاتے تھے کہ یہ تو خراب عورت ہے, یہ ایسی ہے, یہ ویسی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, کھلا گناہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے کہ کیا تم مہر بچانے کے لیے ایسا کام کرو گے, ایسے بڑے بڑے گناہ کرو گے. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اور آدمیوں کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ آدمی لوگ ہیں نا وہ ٹائم پہ بلیک میل کرتے تھے عورتوں کو. کیا بولتے تھے کہ تو جو ہے نا یا تو مہر معاف کر دے یا تو کھلا لے کے چلے جا. اگر تو مہر کا اگر تو ضد کرے گی نا تو میں کیا کروں گا, تیرے پہ الزام لگا دوں گا, دیکھو سب جگہ بدنام کر دوں گا, تیری شادی بھی کہیں نہیں ہوگی. یعنی مال ہڑپنے کے لیے وہ لوگ یہ سب جاہلیت میں نا یہ سب حرکتیں کرتے تھے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا بہنوں ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے. کسی کا بھی نام خراب مت کرو, بدنام مت کرو, ہے نا, بلیم مت کرو. یہاں پہ اگر طلاق دینا ہے تو دے دو, منع نہیں ہے, مگر اس کو جو مہر دیا ہے اس کو تم کو دینا ہی پڑے گا, اس سے کچھ بھی واپس مت لو. اوکے, الحمدللہ. اور یہاں پہ بہنوں یہ جو لاسٹ والی آیت ہے, آیت نمبر 20, اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وقت تھا, بہت لمبا قصہ ہے, میں شارٹ پہ بتا رہی ہوں, کہ ایک وقت آیا بہنوں کی عورتیں بہت زیادہ مہر لینے لگی. تو جب حضرت عمر تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتا چلی کہ عورتیں بہت زیادہ مہر لے رہی ہے, تو انہوں نے ممبر پہ چڑھے اور کہا کہ اتنا تم لوگ ہے نا مت لو, اتنا مہر کا ڈیمانڈ مت کرو, یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تم لوگ ایک مقدار, انہوں نے شاید کہہ دیا کہ اتنا مقدار رکھ دو, اتنا زیادہ مہر مت لو. اور وہ اتر کے جا ہی رہے تھے کہ ایک بوڑھی ایک عورت نے ان کو روکی. اوکے, اور اس عورت نے یہی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 20 پڑھ کے سنا کے بتائی کہ دیکھو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم کسی ایک کو بھی ڈھیروں مال دے دو, یعنی کنتار دے دو, ہیپ آف گولڈ دے دو, تو اس سے واپس مت لو. یعنی کہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ٹریجر لکھا ہے, ہیپ آف گولڈ لکھا ہے, تو تم کون ہوتے ہو مقرر کرنے والے؟ جب اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ کتنا بھی لے سکتے ہو, تو تم جو ہے وہ کیسے بول سکتے ہو کہ کم کرو یا اتنا ہی کرو, ہے نا. تو جب حضرت عمر تعالیٰ عنہ یہ آیت کو سنے بہنوں ایک عام عورت سے, تو ان کو ایک دم جو ہے نا احساس ہو گیا. وہ واپس سے گئے, ممبر پہ چڑھے, اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو آیت ہے یہ صحیح ہے, عورت جو ہے وہ کتنا بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے, کنتار ڈھیروں مال جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے, اور اس کو دینا ہی پڑے گا. تو میں معافی چاہتا ہوں جو میں نے کہا عورتوں کو کم کرو یا اتنی مقدار کرو, نہیں, عورت کتنا بھی مہر جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. اب سامنے والا آدمی پہلے سے پتا رہتا نا کہ پیسے والا ہے تو اتنا لے, غریب ہے تو اتنا لے. اوکے, مطلب ایک مناسب رقم جو ہے وہ فکس کرے. الحمدللہ. اوکے, یہاں تک ہمارا سبق ہے بہنوں. شریعت کو جاننا اور شریعت پر چلنا بہت ضروری ہے نا. الحمدللہ. اور کوئی بات اگر چھٹ گئی ہوگی تو میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کل پورا کروں گی. اوکے, الحمدللہ. یہاں پہ دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام.